السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول وہ منکر عشق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اٹھ بھی جاؤ، سورج سر پر نکل آیا ہے، شائستہ بیگم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ہیں کہاں ہے؟ حورین اپنے بال جھاڑتی ہونکوں کی طرح بیڈ پر اچھلنے لگی۔ ارے بے وقوف لڑکی، تمہارے سر پہ نہیں، آسماں کے سر پہ، شائستہ بیگم نے بیٹی کی حرکت پر کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ حورین کی نیند کا تو پتہ ہی تھا۔ ارے چاچی بیگم، یہ کیوں صبح صبح پاگل بندریا کی طرح بال پکڑے چھلانگے کھا رہی ہے؟ کمرے سے گزرتا عارش دانت نکالے عادت کے مطابق اس کی کلاس لینے آ پہنچا۔ بس اسی کی کمی تھی، یہی انسلٹ کروانا ہوتی ہے بس آپ نے، وہ بھی اسی آگ کے گولے کے سامنے۔ حورین بھوکی شیرنی کی طرح عارش کی طرف لب کی۔ ارے میں نے کیا کیا؟ شائستہ بیگم نے عارش کو بچاتے ہوئے معصومانہ انداز میں کہا۔ آپ ٹھیک سے نہیں جگا سکتی تھی مجھے، اور تم کیا ہر وقت میری جاسوسی میں لگے رہتے ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے، صبح صبح موڈ خراب کر دیا۔ حورین کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا۔ ارے ریلیکس یار، تم تو خواہ مخواہ غصہ ہو رہی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا یار، عارش نے صفائی پیش کرتے ہوئے جان بچانا چاہی۔ صبح صبح غصہ نہیں ہوتے میری جان، ورنہ سارا دن برا گزرتا ہے۔ چلو شاباش، فریش ہو کر جلدی سے آ جاؤ، باہر ناشتہ لگا ہے۔ شائستہ بیگم بھی اس کا غصہ کم کرنے کو آگے بڑھی۔ وہ منہ بناتی واش روم کی طرف چل دی تو عارش اور شائستہ نے بھی شکر ادا کرتے باہر کا رخ کیا۔ حورین کو دیکھنے کتنے بجے آنا ہے انہوں نے؟ غضنفر صاحب نے بریڈ پر جام لگاتی شائستہ بیگم سے پوچھا۔ حورین کو دیکھنے آ رہا ہے کوئی؟ شائستہ بیگم جواب دے دی۔ اس سے پہلے ہی ثانیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ جی بھابھی، کل رات ہی کال آئی تھی، بس ابھی آپ کو بتانے ہی لگی تھی، سوچا ناشتے کی ٹیبل پر ہی سب کو بتا دوں گی۔ شائستہ بیگم نے تفصیل بتاتے کہا۔ گڈ مارننگ بابا جانی، گڈ مارننگ چاچو چاچی۔ حورین نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے عادتاً با آواز بلند کہا۔ آگی میری پرنسس؟ غضنفر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا جانی۔ حورین نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی تیار ہو جائیں آپ ہی، آپ کو حلال کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اشر نے اسے چھیڑتے ہوئے اطلاع پہنچائی۔ کیا مطلب؟ حورین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اشر تم تو نہ بس فضول ہی بولا کرو، ثانیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ڈپٹا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اشر نے مظلوم شکل بناتے ہوئے احتجاج کیا۔ چپ بیٹھو، ثانیہ بیگم نے گھورتے ہوئے اشارہ کیا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں تمہارے رشتے کے لیے، بس اسی کا بتا رہا ہے اشر۔ شائستہ بیگم نے شفقت بھرے لہجے میں تفصیل بتائی۔ امی بیگم، لیکن بابا جانی ابھی تو میری اسٹڈیز چل رہی ہیں، اتنی جلدی کیا ہے؟ حورین نے رخ غضنفر صاحب کی جانب موڑا، برا سا منہ بناتے کہا۔ ابھی ناشتہ تو کر لو، بعد میں ڈسکس کر لیں گے یہ سب۔ ضیافت صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ لوگ ہی کریں ناشتہ، میں لیٹ ہو رہی ہوں کالج سے، بائے۔ حورین اپنا بیگ اٹھاتے باہر کی طرف چل دی۔ ارے سنو تو، یہ لڑکی بھی نہ کچھ نہیں کھاتی، شائستہ بیگم نے پریشانی سے کہا، جبکہ اشر بھی حورین کے پیچھے ہو لیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ عارش کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھ حورین نے تپ کر پوچھا۔ اطلاع عرض ہے کہ ڈرائیور ایک ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے اشر نے اسے یہ منحوس خبر سنائی۔ اف، کیا عذاب ہے، اور تم پیچھے نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ حورین نے اشر کو گھورا۔ بیٹھ جاؤ اب یار، سب لیٹ ہو رہے ہیں، عارش نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ حورین بھی منہ بناتی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اشر تم نے کبھی کسی بندریا کو بال پکڑے بیڈ پر چھلانگے لگاتے دیکھا ہے؟ عارش نے اشر کو مخاطب کرتے ہوئے نظریں بیک مرر پر مرکوز کرتے ہوئے حورین کی صبح والی حرکت یاد دلائی۔ گاڑی تیز چلاؤ، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ حورین کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ چلا ہی رہا ہوں، عارش نے ہنسی دباتے کہا۔ گڈ، اور چلاؤ، وہ بھی خاموشی سے، ورنہ چاچو کو ایک میسج جائے گا، تمہاری فضول خرچی کی لسٹ کا پھر بھگتنا خود۔ حورین اطمینان سے کہتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس چیز کا مذاق نہیں چل رہا حور، تم ایسا نہیں کرو گی، اب کی بار تپنے کی باری عارش کی تھی، تو ذرا تمیز اور خاموشی سے ڈرائیو کرو۔ حورین نے آنکھوں پر گلاسز سجاتے حکم جھاڑا۔ دونوں کی نوک جھونک سے محفوظ ہوتے اشر کے تو دانت ایسے باہر نکلے تھے جیسے کسی نے اسے سزا دے رکھی ہو۔ اترو نیچے، آ گیا تمہارا کالج۔ عارش نے حورین کو اتار کر جان چھڑوائی تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ ٹرالی سجاتے شائستہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ لوگ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، ثانیہ بیگم مسکراتے ہوئے شائستہ بیگم سے گویا ہوئیں۔ جی بھابھی، لڑکا بھی اچھا ہے، سب سے بڑی بات اپنا بزنس سیٹ ہے اس کا، شائستہ بیگم نے جلدی میں تبصرہ کرتے کہا۔ اچھا جلدی کریں، اور یہ حورین تیار ہوئی کہ نہیں؟ میں دیکھ کر آتی ہوں، ثانیہ بیگم پوچھتے خود ہی حورین کے کمرے میں چل دی۔ یہ کیا پہن لیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی ثانیہ بیگم نے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہو گیا چاچی، ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اشر اور عارش نے مشورہ دیا یہی پہننے کا۔ حورین نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بتایا۔ ارے جینس شرٹ کون پہنتا ہے ایسے موقع پر، پاگل لڑکی،
اشر اور عارش کو تو میں بعد میں خبر لوں گی، تم جاؤ جلدی سے یہ ڈریس چینج کر کے آؤ۔ ثانیہ بیگم نے اس کے وارڈروب سے شلوار قمیض کا ڈیسنٹ سا جوڑا اسے تھمایا۔ میں جا رہی ہوں، 5 منٹ میں آ جاؤ۔ ثانیہ بیگم جلدی میں کہتے چلی گئیں، تم لوگوں سے تو بعد میں نپٹوں گی۔ حورین پیر پٹکتی بدلے کی منصوبہ بندی کرتی تیار ہونے لگی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری حور، چلو شاباش ٹرالی لے کر آ جاؤ۔ ڈرائنگ روم میں حورین کو کچن میں انٹر ہوتے دیکھ شائستہ بیگم اس کی نظر اتارتے پیار سے کہتی باہر نکل گئیں۔ السلام علیکم۔ نروس سی حورین ٹرالی گھسیٹتی سب کو سلام کرتے روم میں انٹر ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ، آئیے بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ صوفے پر بیٹھی عمر رسیدہ لیکن ہیوی میک اپ کے ساتھ فل فیشن میں لپٹی خاتون نے اسے پیار کرتے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ بھئی ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہماری طرف سے ہاں ہے، بس آپ بھی جلدی سے ہاں کر دیں۔ ساتھ ہی بیٹھی ڈیسنٹ سی خاتون جو دکھنے میں لڑکے کی ماں لگ رہی تھیں، مٹھاس بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے اتنی جلدی کیسے؟ شائستہ بیگم نے گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ غضنفر صاحب کی طرف دیکھا۔ ہم اور کچھ نہیں سنیں گے، بس بھائی صاحب ہمیں جواب چاہیے، بس ابھی، وہ بھی ہاں میں۔ لڑکے کے ساتھ بیٹھے شخص جو دکھنے میں لڑکے کے ابا لگ رہے تھے پرجوش ہو کر کہنے لگے، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ہماری طرف سے بھی ہاں ہے۔ غضنفر صاحب نے بھی فیصلہ سنا دیا تھا، لیجیے منہ میٹھا کریں۔ سب لوگ منہ میٹھا کرنے لگے، جبکہ حورین نے کنکھیوں سے لڑکے کو دیکھا جسے ابھی ابھی اس کا رشتہ طے ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ حورین کی سیٹی گم ہو چکی تھی اور مارے خوف کے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہمدان آفندی۔ بے ساختہ حورین کے منہ سے اس کا نام نکلا، جو فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بلا خوف و خطر زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کر چکی تھی، وہ بھی پورے کالج کے سامنے۔ ہاؤ ڈے یو! شعلہ بار نظروں سے گھرتے ہمدان آفندی نے غصے سے مٹھی بھینچتے کہا، ہاؤ ڈے یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، ہاں؟ پرتعش لہجے میں کہتے حورین کی آنکھیں بھی غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو سامنے کھڑے شخص کو 3-4 تھپڑ اور جڑ دیتی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا مس حورین غضنفر، وہ دانت پیستا انگلی اس کی طرف کرتے کہہ رہا تھا۔ ہاں واقعی اچھا نہیں کیا، تم جیسوں کا دماغ تو جوتوں سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ تمہیں تو میں تھپڑ مارنے کے لیے بھی چھونا پسند نہ کروں، میرے سارے ہاتھ گندے ہو گئے۔ حورین ازلی لاپرواہی سے کہتی اپنا ہاتھ رگڑ کر صاف کرنے لگی، تمہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھو گی۔ وہ قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا ہاتھ پکڑے نوٹس مٹھی میں دبا چکا تھا۔ اور کن سوچوں میں بیٹھی ہیں دلہن صاحبہ؟ عارش نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ یہ پورے 1 سال بعد کہاں سے آ گیا؟ حورین دل میں سوچتی فکر مند ہو رہی تھی۔ ہیلو! عارش نے اس بار زور سے چٹکی کاٹی تو حورین ہوش میں آئی۔ آؤچ! دماغ ٹھیک ہے تمہارا، پاگل انسان! حورین نے جل بھن کر عارش کو گھورا۔ میرا تو ٹھیک ہے، تم ہی حسن کی دیوی بنی، ابھی سے کسی کی سوچوں میں گم تھی۔ عارش نے دانت نکالتے اسے چھیڑا۔ عارش میں وہ حورین کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے کہے۔ پریشانی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ شاباش، ہکلانے کے دورے پڑنے لگ گئے، گڈ گڈ۔ عارش تھا باز کیسے رہتا اسے تنگ کرنے سے۔ دفع ہو، میں یہاں اتنی پریشان بیٹھی ہوں اور تم؟ حورین جھنجھلا کر رہ گئی۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہے ہماری بندریا؟ عارش نے سنجیدگی سے کہا۔ بات ہی ایسی ہے، عالی قدر آگ کے گولے۔ حورین نے بھی سنجیدگی سے لیکن تنزیہ جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اب کی بار معاملے کی سنگینی کو سمجھتے عارش سچ میں سنجیدہ ہوا تھا۔ عارش، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے اس شخص سے بچا لو کسی طرح، حورین نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ہیں؟ کیوں؟ آخر ریزن کیا ہے؟ اچھا بھلا تو ہے ہمدان، اور فیملی بھی اچھی ہے، کوئی معقول وجہ بھی تو ہو۔ عارش اس کی بات پر حیران تھا۔ کہیں پھر سے تو میری محبت کا بھوت نہیں سوار ہو گیا تمہارے دماغ پر؟ عارش نے حورین کے دل پر چوٹ کی۔ عارش، حورین نے اسے غصے سے گھورا۔ ایک بار تم سے بھیک مانگی تھی، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، بار بار تم جیسے کم ظرف انسان سے بھیک مانگنے والی نہیں ہوں میں، وہ بھی اپنی محبت کی، لہٰذا اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ۔ حورین نم ہوتی آنکھوں کو قابو کرتے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، جبکہ اس بار عارش کے دل میں پھانس سی چبھی تھی۔ ہمدان سے کیا مسئلہ ہے پھر تمہیں؟ عارش سیدھا مدعے پہ آیا۔ وہ کالج میں لاسٹ ایئر اس کے ساتھ چھوٹا سا پنگا ہو گیا تھا، وہ مجھے دھمکی دے کر گیا تھا کہ مجھ سے ایسے نہیں چھوڑے گا۔ میں تو سب بھول گئی تھی، لیکن اچانک سال بعد وہ ایسے واپس آ گیا اور میرا رشتہ بھی ہو گیا، اس سے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے۔ عارش، حورین تفصیل بتاتے روحان سی ہو گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ ایسی باتیں چھپانے کی نہیں ہوتی حور، عارش نے اسے ڈپٹا ہی تو تھا۔ اچھا اب زیادہ میرے ابا بننے کی کوشش نہیں کرو، مسئلے کا حل بتاؤ، حورین نے اس کی ڈانٹ پر کان نہ دھرتے ہوئے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، عارش نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے کہا۔ ہیلو ہمدان،
आरिश ने कुछ सोते हुए हमदान को कॉल मिलाई थी और अब वो बालकनी में खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। हेलो, हु इज़ देयर? हमदान लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप करते पूछ रहा था। आरिश हियर। आरिश ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ करवाया। ओह आरिश, कैसे हो यार? हमदान भी मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मैं ठीक हूँ, क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था डिनर साथ करते हैं आज। आरिश ने बेतकल्लुफी से कहा। वाई नॉट, इससे अच्छा क्या होगा, हूर के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। हमदान की हुरैन को हूर कहने पर आरिश के दिल को कुछ हुआ था। हूर भी होगी ना साथ? हमदान के पुरजोश आवाज आरिश की समातों से टकराई। नहीं, हूर का क्या काम भला? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था अकेले में, इसलिए। आरिश का जुमला अधूरा रह गया था। ओह इट्स ओके, तुम प्लीज और टाइम टेक्स्ट कर दो, मैं आ जाऊंगा। हमदान ने उसे खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया और साथ ही कॉल कट कर दी। वो दिसंबर की एक सर्द और खूबसूरत शाम, लॉन से उड़ती गुलाब और मोतिये की खुशबू हुरैन की सांसों को मअतर कर रही थी। कभी वो किसी फूल की खुशबू फील करती तो कभी किसी की। इतनी सर्दी हुरैन से बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन जाने आज उसे सर्दी फील ही नहीं हो रही थी। वो तो आज जैसे दुनिया जहां से बेगानी हो रही थी। आरिश कब से बालकनी में खड़ा उसकी हर हर अदा नोट कर रहा था। कमर से नीचे जाते खुले सिल्की बालों में गुलाब का फूल तोड़कर सजाती वो वाकई कोई होर लग रही थी। वो कब से यूं ही मुस्कुराते हुए फूलों को देखती लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी जाने कब आरिश उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ। आरिश खुद भी नहीं जानता था उसे कौन सी कुव्वत यहाँ खींच लाई थी। हुरैन अंदर जाने को पलटी ही थी कि आरिश से उसकी टक्कर हुई और वो उसके सीने से जा लगी। जहां हुरैन बौखलाकर पीछे हटी थी, वहीं आरिश को भी होश आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुरैन ने घबराहट छुपाते हुए उससे पूछा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आरिश ने बात बनाई। गुजर रहे थे या? हुरैन ने नजर चुराते कहा। आरिश ने उसकी अदा पर उसे गौर से देखा। हुरैन की आंखों में आज उसे अलग ही चमक महसूस हुई। लबों पर खूबसूरत मुस्कान मुसलसल उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। या क्या मतलब, तुम कब से बातें अधूरी छोड़ने लग गई? मेरा मतलब है किसी को ढूंढ रहे थे क्या? वरना गुजरते हुए तुम्हारा रुख दूसरी तरफ होना चाहिए था। हुरैन ने उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा था। लगता है बंदरिया का दिमागी तवाज़ुन उलट चुका है, वो भी पूरी तरह। आरिश ने कहका लगाते उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें कैसे पता? हुरैन भी हंस रही थी। अब तो आरिश को यकीन हो चुका था कि उसका दिमाग पलट चुका है। खुदा का वास्ता, डरा क्यों रही हो? ना कोई तंज ना कोई गुस्सा। खैर तो है? आरिश को तशवीश हुई। बस ऐसे ही, हुरैन ने शर्माते हुए कहा, जिस पर आरिश अचानक ठटका था। हूर, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? आरिश को हूर का यूं शर्माना जहर और अजीब लग रहा था। आरिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, हुरैन ने नजरें झुकाए इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ कहो। आरिश उसकी बात जानने के लिए बेचैन हुआ। आरिश, मैं। वो पल भर को रुकी। आरिश, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है, और पता है कब से? बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कब से और कैसे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हर पल उसे देखूं, उसे महसूस करूं। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ, वो एक्साइटेड होती आरिश को बता रही थी। आरिश, मेरा दिल करता है मैं उसका हाथ थामकर झूमती रहूं, वो बच्चों की तरह कहती घूम रही थी। ब्लैक कलर का लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पहने, बालों में सुर्ख गुलाब सजाए, वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आरिश, और तुम्हें पता है, हुरैन खुशी से कहे जा रही थी, हूर, मुझे किस लिए बता रही हो ये सब? आरिश, तपा ही तो था, किसी और की मोहब्बत का इकरार वो उसके सामने धड़ल्ले से कर रही थी। अरे तुम्हें ना बताऊं तो किसे बताऊं? आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। और हूर की जुबान को अचानक से ब्रेक लग गई थी और एक पुरशोक निगाह आरिश पर डाली। और आरिश ने टुटोती नजरों से उसे देखते पूछा। रैन ने एकदम आरिश का हाथ थाम लिया था। आरिश उसकी हरकत पर जैसे सख्ते में चला गया। आरिश, तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा सब कुछ। वो दिल में बेशुमार अरमान लिए इसी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसे कह रही थी, जबकि आरिश हैरान होता जैसे कहीं खो गया था। इतनी देर तक आरिश को खामोश देख हुरैन का दिल जोर से धक धक करने लगा था। आरिश, आई लव यू। हुरैन की आवाज उसकी समातों से टकराई थी। एक झटके से आरिश ने उसका हाथ झटक कर उसे खुद से दूर किया था। तुम वाकई में पागल हो चुकी हो, आरिश हकारत भरी नजर से उसे घूरते कह रहा था। आरिश, वो हैरान खड़ी उसे यकटक देखे गई। तुमने मोहब्बत कर ली मुझसे? वाओ, बहुत एहसान कर दिया है ना। तुम जैसी बदतमीज, बददिमाग और मगरूर लड़की की तरफ मैं देखना भी पसंद ना करूं, आरिश ने एक एक लफ्ज पर जोर देते कहा था। हुरैन के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर्दी से बर्फ होते सुर्ख गाल अब बुरी तरह से आंसुओं से भीग चुके थे। आरिश, मेरी मेरी बात तो सुनो। हुरैन ने भीगी आवाज में कुछ कहना चाहा। जस्ट शट अप। जो लड़की यहाँ खड़ी मेरे हाथ पकड़कर बेशर्मी से इज़हार मोहब्बत कर रही है, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाती होगी। आरिश गुस्से से लाल आंखों में उसे घूरता उसके किरदार पर बात ले गया था। आरिश, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में भी आई कैसे? अब की बार
हुरैन चिल्ला उठी थी, उसके तन बदन में आग लग गई थी। तो और क्या कहूँ, तुम जैसी बेशरम लड़की को, वो कहका लगाते तंजिया उसे कह रहा था। उसके अल्फाज हुरैन पर पत्थर की तरह बरसे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती। नफरत हो रही है मुझे आज तुमसे। आरिश की आंखें शोले बरसा रही थीं। बकवास बंद करो अपनी, समझे? हुरैन पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी, जबकि आवाज रुंधी हुई थी। नफरत? तुम जैसा शख्स तो किसी लड़की के प्यार के भी काबिल नहीं। मिस्टर आरिश ज़ियाफत अली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से इस वक्त नफरत भी नहीं हो रही। मेरी नफरत के भी काबिल नहीं तुम, समझे? किसी काबिल भी नहीं तुम। वो चिल्लाते हुए कहती, आंखें रगड़ती अंदर भागी थी, जबकि आरिश वहीं सुन खड़ा हूर के अल्फाज सोचता रह गया था। आरिश भाई। अशर आरिश को पुकारता उसके रूम में चलाया। वो जो बालकनी में खड़ा बीता माजी याद कर रहा था, नम आंखों को साफ करते अंदर आ गया। हाँ बोलो अशर, उसने बेड पर बैठते कहा। हुरैना भी कह रही है कि आपने डिनर पर जाना है ना, तैयार हो गए? अशर ने उसके हुलिये पर निगाह दौड़ाते कहा। हाँ बस होने लगा था रेडी। आरिश जवाब देता वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। हुरैन आप ही ने कहा है कि इस आग के गोले को कह दो लेट ना हो, टाइम से पहले ही चला जाए। अशर ने आग के गोले पर जोर देते हुए दांत निकालते हुए हुरैन का पैगाम पहुंचाया। तुम्हारी बत्तीसी ज्यादा नहीं बाहर आ रही, लगता है तोड़नी पड़ेगी। आरिश ने उसे खूंखार नजरों से घूरी अनायत फरमाई। अरे आप तो बुरा ही मान गए, जा रहा हूँ मैं आग के गोले। अशर उसे दांत निकालते चिढ़ाते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। रुक बताऊं तुझे। आरिश भी उसके पीछे भागता हुआ लाउंज में आ गया। अरे आप ही मम्मा बचाओ। सोफे के इर्द गिर्द घूमता अशर दांत निकाले मदद की अपील करता लॉन की तरफ भागा। सच बच के दिखा जा, आज तो खबर लेता हूँ तेरी। आरिश भी उसके पीछे पीछे था। गुस्से में लॉन की तरफ लपकते सामने से आती हुरैन उसे दिखाई न दी और उनकी जोरदार टक्कर हो गई। अंधे हो क्या, जानबूझकर घटिया हरकतें हो रही हैं। हुरैन अपना माथा दबाती गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि आरिश बस उसके जुमले पर उसे हैरत से देखे गया। सॉरी, आरिश कहते तेजी से अपने कमरे में चला गया। शुक्र है यार आ गए हो, मैं तो समझा मुझे इनवाइट करके खुद भी गए। हमदान ने आरिश से मुसाफा करने के बाद मुस्कुराते हुए शिकवा किया। आरिश ने उसे एक पल को गौर से देखा था। खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक ये वजीह शख्स वाकई हुर के काबिल था। बस यार ट्रैफिक का तो पता ही है तुम्हें। और सुनाओ कैसे हो, आरिश ने पूछा। बहुत खुश, हमदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इधर उधर की बातों के बाद आरिश ने मुद्दे पर आने का सोचते ही बात कर दी। हमदान तुम हुरैन को पसंद तो करते हो ना? आरिश के सवाल पर हमदान पल भर को चौंका। सच पूछो तो हुरैन मेरी मामा और बाबा की चॉइस है, लेकिन हुरैन को देखने के बाद मेरा दिल मजबूर हो गया है। आई एम लकी। हमदान ने अपने दिल का हाल बयान किया। उसके आखिरी जुमले ने आरिश के दिल पर चोट की। यस यू आर। हुरैन ने बताया था उसके कॉलेज में छोटा सा मिसहैप हो गया था, वो उसके कि बहुत शर्मिंदा था। आरिश ने उससे उगलवाने की बात बनाई। हुरैन के साथ उसके कॉलेज में? हमदान ने नासमझी में पूछा। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? आरिश ने उसे हैरत से देखा। नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। एमी, हुरैन को फर्स्ट टाइम मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन हम प्रपोजल लाए थे, तभी अपना दिल हार बैठा था। हमदान ने दिल पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। दोनों काफी देर बातें करते रहे थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतनी जल्दी सब कैसे होगा। शास्ता बेगम ने सबको चाय सर्व करते हुए फिक्रमंदी से कहा। इतने कम दिन रह गए हैं, कैसे होंगे सारे इंतजामात? मैं तो खुद परेशान हूँ। गजनफर अली भी मुतफिकर थे। सब हो जाएगा गजनफर भाई, आप इतने फिक्रमंद ना हो। ज़ियाफत अली ने चाय का मग टेबल पर से उठाते हुए उन्हें तसल्ली दी। हुरैन ने अलग खुद को कमरे में बंद कर रखा था। सबसे बहुत नाराज है भला, इतनी जल्दी भी क्या थी? भाई साहब कम अज कम स्टडीज कंप्लीट होने तक का वक्त ही ले लेते। सानिया बेगम ने माथे पर बल डाले शिकवा किया। लो जी, तुम फिर से शुरू हो जाओ। पिछले 10 दिनों में 10,000 बार ये बात दोहरा चुकी हो, पहले ही भाई भाभी फिक्रमंद है। ज़ियाफत अली ने मुस्कुराते हुए बेगम से कहा। कह तो ठीक रही हैं भाभी, इतनी जल्दी कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगी मेरी होर? शास्ता बेगम मजीद मुतफिकर हुई। अरे भाभी, वो कोई बैकवर्ड फैमिली तो है नहीं कि जाते ही हुरैन पर घर के कामकाज की जिम्मेदारी डाल देंगे। ज़ियाफत अली ने इन्हें तसल्ली देने को कहा, जबकि दिल तो अपना भी परेशान था घर की इकलौती बेटी होने की वजह से। हुरैन चाचू चाची की भी जान थी। हमदान से मुलाकात के बाद आरिश को तसल्ली हो गई थी कि हमदान को कुछ याद नहीं है और हुरैन ऐसे ही डर रही है, जबकि हुरैन का खौफ जूं का तूं था। इधर आरिश से मुलाकात के अगले ही दिन हमदान की फैमिली शादी की डेट फिक्स करके जा चुके थे। हुरैन का एहतजाज किसी काम ना आया। मजबूरन उसे सबके फैसले के आगे सर खम करना पड़ा। आरिश ने स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन में अप्लाई कर रखा था और उसके जाने का परवाना उसे मिल चुका था। हुरैन की शादी के अगले दिन उसने रवाना होना था। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। आज हुरैन ने शादी का जोड़ा लेने जाना था। वो रूम में रेडी होकर बैठी हमदान की मम्मा का इंतजार कर रही थी जब शियासा बेगम ने उसका रूम नॉक किया। आ गई हमदान की मम्मा।
उसने शास्ता बेगम को देखकर उठते हुए कहा, नहीं बेटा, हमदान की मम्मा तुम्हारा बुटीक में ही वेट कर रही हैं। हमदान आया है लेने, जल्दी से आ जाओ। शास्ता बेगम मुस्कुराते हुए कहते जाने को मुड़ी थी। मम्मा, लेकिन हमदान क्यों? हुरैन ने घबराते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, होने वाला शौहर है तुम्हारा, और घबराओ नहीं, अच्छा लड़का है, इसलिए इजाज़त दी है। आ जाओ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बाहर ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरैन को पुरशौक निगाहों से देखते हमदान उसे सलाम करते उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन ने उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके नज़रें झुकाए जवाब दिया। ख्याल से जाना जाते हुए शास्ता बेगम ने ताकीद की। वो बाहर आई तो हमदान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके लिए फ्रंट डोर खोले खड़ा था। वो जो लेमन एंड ऑफ वाइट शलवार कमीज के साथ टी पिंक दुपट्टा सर पर टिकाए हाफ कैच बालों में से आज़ाद होती लटों को कान के पीछे सिरकाते घबराते हुए चली आ रही थी, उसे यूं खड़ा देख हैरान हुई। फिर जल्दी से कार में बैठ गई थी, जबकि हमदान ने हुरैन के सरापे को आज बहुत गौर और मोहब्बत से देखा था। शॉपिंग के दौरान भी हमदान की नज़रें हुरैन को कंफ्यूज करती रही थीं। शॉपिंग के बाद हमदान की मम्मा तो फौरन घर चली गई थी, जबकि हमदान उसके लाख इनकार के बावजूद डिनर पर ले आया था। इतनी घबराई हुई क्यों हो हूर? हमदान ने उसे शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। हूर ने कांपते हाथों को गोद में रखकर खुद को नॉर्मल करते कहा। खाना आते ही दोनों खाना खाने लगे। हुरैन चाहती थी जल्द अज जल्द घर चली जाए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, खासकर ये राइट वाला। हमदान नजरें उसके हाथ पर जमाए शरारत से कह रहा था। जी, ये वाला क्यों? हुरैन को उसकी बात पर हैरत हुई। इसलिए क्योंकि इस पर ये जो काला तिल है, ये इस हाथ को और पुरकशिश बना रहा है। हमदान के अंदाज पे हुरैन ने झीमते हुए हाथ गोद में रख लिए। उसकी इस अदा पर हमदान कहका लगाकर हंस दिया। भला कोई हाथों की तारीफ भी करता है और कुछ खूबसूरत नहीं क्या? वो दिल ही दिल में सोचती मुंह बनाकर रह गई। हुरैन शॉपिंग से लौटी तो आरिश लॉन में ही टहलता उसका इंतजार कर रहा था। इतना टाइम क्यों लग गया? ऐसा क्या लेने लग गई थी? आरिश ने टटोलती नजरों से पूछा। एक बात बताओ, तुमने मेरी चौकीदारी कब से शुरू कर दी है? मैं जब जाऊं जब आऊं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हुरैन ने भुनाए हुए लहजे में कहा और अंदर की तरफ जाने लगी। हूर, मुझे कुछ बात करनी है। आरिश के लहजे से बेबसी साफ झलक रही थी। मुझसे बात करनी है? वाह! हुरैन ने कहका लगाया जैसे आरिश ने कोई जोक सुनाया हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें समझने में। उसका अंदाजा मुझे अब हुआ है। आरिश के लहजे में बला की संजीदगी थी। गलती? खैर तो है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही मजाक के मूड में हो। आग के गोले? हुरैन ने लापरवाही से कहा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कैसे इतना गलत समझा तुम्हें? उस दिन मैं भी तो तुमसे मैं भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार करने आया था, लेकिन जब तुमने खुद से कहा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं कैसे इतना ओवर रिएक्ट कर गया। वो जैसे अपनी सफाई पेश कर रहा था। मिस्टर आरिश, आपका दिमाग खराब हो गया है। आप कैसे मुझ जैसी घटिया लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं? हुरैन ने लफ्ज चबा चबा के घटिया पर जोर देते कहा। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। आरिश ने इल्तजा की। तुम वही हो ना जो कल मेरी मोहब्बत का मुनकर था, आज कैसे मुझसे मोहब्बत हो गई? अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें। मेरी शादी क्या हो रही है, तुम्हें आग लग गई। तुम तो अभी भी खुश फहमी में होगी कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? मैं बहुत खुश हूँ हमदान के साथ। आज तुमने ये बकवास कर दी है, दोबारा मुझसे ऐसी फजूल बात की तो अच्छा नहीं होगा। हुरैन उसे गुस्से से घूरते हुए कह रही थी। और मैंने हर पल तुमसे मोहब्बत की है, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद से खुद को कोसता हूँ दिन रात। आरिश अफसरदगी से कह रहा था, जैसे अगर हुरैन ना मानी तो उसका दम घुट जाएगा। अच्छा, वाकई तुमने जितनी तकलीफ मुझे दी है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। शक्ल गुम करो अब अपनी। हुरैन गुस्से से कहती अंदर की जानी बढ़ चुकी थी, जबकि आरिश इसी जगह इसी तरह दिल शिकस्ता खड़ा था जहां साल पहले था। बस फर्क ये था कि उस रोज दिल आरिश ने तोड़ा था और आज हुरैन हिसाब बराबर कर गई थी। सबको जल्दी में शॉपिंग दिखाते थक गई हूँ का बहाना करती हुरैन अपने रूम में आ गई थी। गलती? एहसास हो गया। आरिश, तुम्हें क्या पता कितनी रोई थी, कितना तड़पी थी। तुम्हारी मोहब्बत की इल्तजा किस दिल से की थी तुमसे, कितने दिन लगे थे हिम्मत करने में। तुम्हारे यूं बेदर्दी से धुतकारे जाने के बाद खुद को संभालने में मैंने किस आस से तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल रखा था, और तुमने क्या किया? कुछ ना कहा। हाँ, मैंने पहल कर दी थी तो हम गैर तो ना थे। कितनी खुश थी उस दिन। मैं अपना सब समझकर तुमसे कह दिया और तुमने यूं एक पल में मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। ऐसे बेगाना कर दिया जैसे मुझे जानते तक नहीं थे। मैंने तुम जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर ली थी। भाड़ में जाओ अब तुम। हाथ में पहना ब्रेसलेट उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर जोर से फेंकते वो खुद से बातें कर रही थी। उससे से आंसू नदी की तरह बह रहे थे। अरे माशा अल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, किसी की नज़र ना लगे। शास्ता बेगम हुरैन के हॉल पहुंचते ही देख नज़र उतारने लगी थी।
वो रेड एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे पे रिच रेड प्लम में नफासत से दुपट्टा सर पर टिकाए बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उस दिन के बाद से आरिश और हुरैन के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। आरिश उसकी नज़रों से चुपता फिर रहा था। बारात आ चुकी थी। हमदान भी दूल्हे के रूप में बहुत हैंडसम लग रहा था। हुरैन ने कन अखियों से हमदान की वजाहत को सराहा था, जबकि एक खौफ उसके दिल में अब भी मौजूद था। बारात का फंक्शन बहुत अच्छे से गुजर गया था। हुरैन और हमदान की जोड़ी को हर शख्स ने रश्क भरी निगाह से सराहा था। आरिश उनमें सबसे आगे था। बेटा, अब आप रिलैक्स हो जाएं, मैं भी अपने रूम में चलती हूँ, हमदान की मम्मा कहते रूम से निकल गईं। कुछ ही देर बाद हमदान रूम में दाखिल हो चुका था और उसे रूम में एंटर होते देख हुरैन की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। हमदान चलता हुआ हुरैन के बिल्कुल सामने आ बैठा था। यू नो हूर, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। हमदान का अंदाज ऐसा था जैसे अपनी किस्मत पे रश्क कर रहा हो। हुरैन की नज़रें शर्म से मजीद झुकी थीं और पता है, इतने खूबसूरत हाथ दुनिया में शायद किसी के भी नहीं। हमदान ने मोहब्बत से हुरैन का दायां हाथ थामते हुए कहा। हुरैन को उसकी ये बात अजीब लगी। पूछोगी नहीं क्यों? हमदान फिर गोया हुआ। हुरैन को लगा जैसे किसी ने सर पर बॉम्ब गिरा दिया हो। क्यों? हुरैन ने बिलाकर हिम्मत करके पूछ ही लिया। क्योंकि इस हाथ से मुझे ज़िंदगी में पहली बार किसी का थप्पड़ पड़ा था। हमदान ने हुरैन के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा। अंदाज काट खाने वाला था। जी? हुरैन ने हमदान की आंखों में आंखें डालकर कहा। जी, इसी हाथ से थप्पड़ मारा था। मिस हुरैन गजनफर, वो चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए पूछ रहा था। आपने तो आरिस से कहा था कि आपको आपको याद नहीं। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। हुरैन हैरत के मारे रूहानसी होकर इल्तिजा कर रही थी। अरे अरे, तुम तो रोने लगी। थप्पड़ मारते हुए क्यों नहीं सोचा? काश अंजाम सोच लेती तो आज ऐसा ना होता। चलो बताओ, क्यों मारा था थप्पड़? वो भी पूरे कॉलेज के सामने। हमदान बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। वो मुझसे गलती। हुरैन के आंसू टिप टिप बह रहे थे। उससे सिर्फ इतना ही कहा गया। मैंने कहा था ना हुरैन गजनफर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें पता चलेगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है, वो भी बिला वजह। हमदान की बात पर हुरैन का तो जैसे सांस ही रुक गया था। हमदान का उठा हाथ देखकर आंखें बंद किए वो चिल्ला रही थी। नहीं, प्लीज़ नहीं। हमदान का उठा हाथ देखकर हुरैन की तो जान ही निकल गई थी। आंखें नीचे, हाथ चेहरे के आगे किए वो खौफ से रोते हुए चिल्ला रही थी। नहीं, प्लीज़ नहीं। उसकी ये हालत देख जहां हमदान को राहत का एहसास हुआ था, वहीं उसकी हंसी भी छूट गई। वो अपना हाथ हुरैन के हाथ पे ताली बजाने के अंदाज में मारता कहके लगाते हंसे जा रहा था। हूर डेयर, क्या हुआ? हमदान के कहके मजीद बुलंद होते जा रहे थे, जबकि हूर मारे खौफ के फटी फटी आंखों से उसे देखे गई। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? या अल्लाह, क्या होने वाला है मेरे साथ? हुरैन दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती आंसू बहाने में मसरूफ थी, जबकि अब उसको इस हालत में देख शायद उस पर तरस ही आ गया था। हमदान को हर हाथ किसी के गाल पे बजने के लिए नहीं उठता। माय डियर वाइफी, वो उसका हाथ थामता हंसते हुए कह रहा था। हुरैन के हाथों की कपकपाहट वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। ये खूबसूरत हाथ ना उठता तो शायद तुम्हें हासिल करने की चाह भी मेरे दिल में ना जागती। हमदान ने हुरैन की हथेली पर बोसा देते कहा। हुरैन ना समझी की हालत में उसे देखने लगी। अरे मेरी हूर जैसी वाइफी, मैं उन बेगैरत मर्दों में से नहीं जो औरत पर हाथ उठाकर बदला लेने को कारनामा समझते हैं। बस एक छोटा सा शिकवा है। हूर, आखिर मेरी गलती क्या थी? बंदा पूछ ही लेता है पहले कि मिस्टर, मुझे हीरोइन की तरह थप्पड़ मारने का बहुत शौक है, किस वजह से मारूं? हमदान उसकी उंगलियों को छेड़ता हंसते हुए कह रहा था। उसके इस अंदाज पे हूर के चेहरे पर भी अब हंसी बिखरी थी। दिल चाहा था इस लम्हे वो हमदान पर जान निछावर कर दे। पता भी है तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई थी मैंने? जब तुमने नहीं सुना तो मजबूरन तुम्हें रोकने के लिए हाथ पकड़ना पड़ा। हुरैन अब भी नहीं समझी और ना समझी से उसे देख रही थी। लेकिन मुझे क्यों रोकना चाहते थे आप? नज़रों में हैरत और बेपनाह मोहब्बत लिए वो पूछ रही थी। हाय, अब इस अदा और कातिल नज़रों के वार करती पूछोगी तो बंदा यहीं फोत हो जाएगा। हमदान ने उसको मजीद करीब करते शरारत से कहा। कैसी फजूल बात की है हमदान? हूर के मुंह से बेसाख्ता निकला। वो उसे घूर कर रह गई। अच्छा सॉरी, ऐसे तो ना देखो अब। हमदान कान पकड़ते कह रहा था। तुम्हें याद है उस दिन तुम कुछ भूल गई या तुमसे कुछ गिर गया था? हमदान के पूछने पर हुरैन दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी। नोट्स, मेरे नोट्स एग्जाम्स में 2 दिन रहते थे और मेरे नोट्स। हुरैन ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शर्मिंदगी के मारे उसकी नज़रें खुद ही झुक गई थीं। जी हाँ मिसिस हुरैन हमदान आफिंदी, मैं आपको वही नोट्स देने आया था जो आप कॉरिडोर में गलती से गिराई थी। हमदान ने तफसील बताई। उफ खुदाया, आई एम सॉरी हमदान, मुझे सच में पता नहीं था, मैं डर गई थी। कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की तो सॉरी।
हुरैन शर्मिंदगी से अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। हे, तुमसे किसने कहा कि सॉरी करने को? हाँ, बेवकूफ़ लड़की, उस दिन मुझे तुम्हारे थप्पड़ की वजह से तुमसे इश्क हो गया था। मेरे दिल ने ज़िद लगा ली थी कि बस यही बंदी जचेगी हमदान आफिंदी के साथ, जो अपनी हिफाजत करना जानती है। हमदान उसकी पेशानी को चूमते फ़ख्र से कह रहा था। हुरैन का चेहरा शर्म से लाल हुआ और दिल एकदम से मुतमईन। हमेशा ऐसे ही अपनी हिफाजत करना, मिसिज हुरैन हमदान आफिंदी। उसके गाल को छेड़कर कहते वो हुरैन को गले लगाए उसे महसूस कर रहा था। हुरैन की आंख से अल्लाह का शुक्र अदा करते आंसू बहकर हमदान के सीने में जज्ब हो रहे थे। रात की खूबसूरत चमक, चांद और झिलमिलाते तारे दोनों की मोहब्बत के गवाह बन गए थे। आरिश अपनी पैकिंग में मसरूफ था। सानिया बेगम रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थीं। अभी तो हुरैन को रुखसत किया है, अब तुम भी जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? सानिया बेगम के आंसू आरिश के दिल पर गिर रहे थे। आसान तो उसके लिए भी ना था, फैमिली के बगैर कभी शहर से बाहर तक तो गया नहीं था, फिर ये तो परदेश जाने की बात थी। दरे हकीकत तो उसने ये फैसला हुरैन को भुलाने के लिए किया था। मम्मा प्लीज़, अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कैसे जा सकूंगा? आरिश माँ को गले से लगाते कह रहा था। उसकी अपनी आंखें छलक गई थीं। ठीक तो कह रही हैं, हमसे मशवरा किए बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? शास्ता बेगम भी अफसरदा थीं। ज़रूर हुरैन को बताया होगा उसने, लेकिन हुरैन को देखें, इतनी पक्की थी, भनक तक ना लगने दी। गजनफर साहब अलग सदमे में थे। तीन ही तो बच्चे थे घर में, उनसे ही घर की रौनक थी। हुरैन के जाने से पहले ही घर वीरान हो गया था और अब आरिश। चाचू प्लीज समझे ना, फ्यूचर बनाने के लिए ये जरूरी था। फिर 2 साल की ही तो बात है, वक्त पर लगाकर उड़ जाएगा। आरिश ने समझाने की अपनी सी कोशिश की। तुम पैकिंग करो बेटा, परेशान ना हो। भाभी आप भी हिम्मत करें, ऐसे ही रो रो कर बेटे को रुखसत करेंगी तो बच्चे का भी दिल परेशान रहेगा। शास्ता बेगम ने दिल खड़ा करके कहा और सबको समझाया। आरिश भाई, आप चले जाएंगे तो मैं आग का गोला किसे कहूँगा? अशर ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरे पर हंसी आ गई। इधर आ, तुझे बताता हूँ। आरिश उसके पीछे दौड़ा। अशर थोड़ा आगे जाकर खुद ही रुक गया और आरिश के गले लगकर रोने लगा। आरिश भाई आप ना जाएं प्लीज़, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अशर छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अरे तुम हुरैन की तरफ चले जाया करना, 2 साल की ही तो बात है, चुप करो बस, चलो अंदर। आरिश अशर को खामोश कराते अंदर की तरफ चल दिया। उसी लम्हे उसे हुरैन की याद शिद्दत से आई थी और वो तो जानती तक ना थी कि आरिश लंदन जा रहा है। तुम हुरैन के वलीमे के नेक्स्ट डे का भी प्लान कर सकते थे। वैसे ज़ियाफ़त अली ने आरिश को डिपटा। हाँ और क्या, अब लोग अलग हज़ार सवाल करेंगे। सानिया बेगम भी खफा हुई। अरे यार, लोगों की टेंशन छोड़े, अब तो फ्लाइट का टाइम होने वाला है, 4 बजे निकलना है मैंने। आरिश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अभी तो 3 घंटे हैं, हम हुरैन आप ही को बुला लेते हैं। अशर ने अपना आइडिया पेश करते तोपों का रुख अपनी जानिब किया। लो इनकी सुन लो, बिल्कुल ही कोई अकल से पैदल औलाद मिली है हमें। ज़ियाफ़त साहब ने अशर को घुरी से नवाजते कहा। ठीक कह रहे हैं, एक ने ना आओ देखा ना ताओ लंदन जाने का फैसला कर लिया और दूसरे मौसूफ की अकल ही नहीं कि बहन अभी चंद घंटे पहले रुखसत होकर अपने ससुराल गई है, बुला लेते हैं। सानिया बेगम ने खा जाने वाली नजरों से देखते अशर की क्लास लेते आरिश को भी कोसा। भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया? अशर ने अजली लापरवाही से कहा। तुम तीनों में सिर्फ मेरी हुरैन ही अक्लमंद थी बस। सानिया बेगम ने फखरिया कहा। अच्छा बस करो, अब जल्दी सब समेटो तुम। ज़ियाफ़त अली ने हुक्म सादिर किया तो आरिश तेजी से हाथ चलाते पैकिंग मुकम्मल करने लगा। और उठ जाओ, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हुरैन के चेहरे से बाल हटाते हुए हमदान उसे प्यार से कहते जगा रहा था। हमदान की मोहब्बत भरे अंदाज ने हूर को फौरन उठने पर मजबूर कर दिया था। नमाज की पाबंद तो वो थी ही, लेकिन ये जान करके हमदान भी नमाज का पाबंद है, उसका दिल मुतमईन हुआ था। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते वो नमाज के लिए उठ चुकी थी। हमदान मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटा तो हुरैन बालकनी में जाए नमाज पर बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी। ठंडी हवा उसकी सांसों को मुअत्तर कर रही थी। हुरैन को शुरू से ही बालकनी में खुले आसमां के नीचे बैठकर फजर पढ़कर सुकून मिलता था। हमदान भी चुपके से हुरैन की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनते उसके पास ही आ बैठा। हुरैन जब तिलावत कर चुकी तो उसने मुस्कुराकर हमदान को देखा, जो उसी को पुरशौक नजरों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रही हैं? हुरैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमाज की तरह दुपट्टा ओढ़े वो बहुत पाकीज़ा लग रही थी। देख नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। मैं हमेशा सोचता था अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई जो अल्लाह की इबादत से दूर हुई तो मैं क्या करूँगा। थैंक यू हूर, तुमने मुझे दुनिया का खुशकिस्मत इंसान बना दिया। अल्लाह ने मुझे मेरी हूर दुनिया में ही अता कर दी। हमदान मोहब्बत उसे साथ लगाते कह रहा था। कितनी हसीन शुरुआत थी उनकी ज़िंदगी की। आरिश के जाते ही घर में खामोशी ने डेरा डाल दिया था। सबके दिल में उदासी ने अपना बसेरा कर रखा था। हुरैन के लिए नाश्ता ले जाने की तैयारी भी इंतहाई खामोशी में की गई। सबको यही लग रहा था कि हुरैन आरिश के इस फैसले से आगाह थी।
और फिर भी उसने सबसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हुरैन बेटा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाएं, आपकी फैमिली आ चुकी है, मम्मा नॉक करते कह रही थी। हुरैन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जी आंटी, मैं रेडी हूँ, बस हमदान चेंज करने 2 मिनट में आई। खूबसूरत मुस्कान सजाए वो कह रही थी। हमदान की मम्मा को अपनी बहू पे बेहद प्यार आ रहा था। हमदान की फरमाइश पे हुरैन ने टीपिंग फ्रॉक पहना था, जिसके गले और स्लीव्स पर गोल्ड कलर में दबका का काम नफासत से किया हुआ था। खुले बालों के साथ कानों में झूलते झुमके और शानों पर सलीके से लिया दुपट्टा, साथ ही हमदान की मोहब्बत का रंग हुरैन को आज हद से ज़्यादा खूबसूरत बना गया था। शौहर की सच्ची मोहब्बत हासिल हो तो हर बीवी इतनी ही दिलकश और खूबसूरत लगती जितनी हुरैन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हमदान की मम्मा ने प्यार से कहते हुरैन के सर पर हाथ रखा। वॉशरूम से निकलते हमदान की शोक नज़रें खुद पर महसूस करते ही हुरैन मारे हया के झेंप गई। अच्छा जल्दी से आ जाए, सब आप दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमदान की मम्मा कहते जा चुकी थी। नीचे लाउंज में बैठे सब लोग आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। हमदान के घर से तमाम गेस्ट जा चुके थे, बस उसकी फूफो और उनकी बेटी फबीहा रुक गए थे। शुक्र है आप ही आ गई, हमदान और हुरैन को सीढ़ियों से उतरता देख अशर ने खड़े होते हुए खुशी से कहा, जबकि पास बैठी फबीहा ने हुरैन को नफरत भरी निगाह से नवाजा था। कैसी है मेरी बेटी, गजनफर साहब ने हुरैन को गले लगाते प्यार से कहा। मैं ठीक हूँ बाबा, हुरैन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबसे मिलने के बाद हुरैन हमदान के साथ बैठने ही लगी थी कि फबीहा उससे पहले हमदान के पास आकर बैठ गई। हुरैन उसकी ये हरकत देख पल भर को ठटकी और हमदान को देख कर रह गई। हमदान अलग शौक में था, लेकिन हुरैन इग्नोर करती अपनी मम्मा के साथ ही बैठ गई। चची, आरिश नहीं आया, हुरैन ने मतलाशी नज़रों से लॉन्च का जायजा लेते कहा। ये आरिश कौन है जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार था? इससे पहले कि सानिया बेगम कोई जवाब देती, फबीहा ने तंजिया कहते टांग अड़ाई। दिमाग ठीक है? ये किस अंदाज में बात की है तुमने, तमीज भूला यूँ कहीं? हमदान का पारा अचानक से हाई हुआ था। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। हमदान के बदलते तेवर देख वो हड़बड़ा गई। भाभी है तुम्हारी, समझ आई, आइंदा ये अंदाज मैंने सुना तो अंजाम खुद देखोगी। मम्मा नाश्ता लगवाएं और ख्याल रहे टेबल पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, सो हमारी फैमिली के अलावा मुझे कोई ना दिखे, हमदान दो टूक अंदाज में कहते उठ खड़ा हुआ था। और चलो हम डाइनिंग रूम ही चलते हैं, बल्कि सब वहीं चलकर बातें करते हैं, क्या ख्याल है बाबा? हमदान प्यार से हुरैन का हाथ थामते मुस्कुराते हुए कह रहा था। अपनी बेटी के लिए हमदान की मोहब्बत देखकर गजनफर साहब की आंखें नम हुई थीं और दिल अल्लाह के शुक्र से मसरूर हुआ। चलें भाई साहब, हमदान के पापा भी फबीहा को घूरते उठ गए थे। फबीहा और शाहीन का नाश्ता उनके रूम में भिजवा दें। वली आफिंदी भी फिर हमदान के पापा थे, अच्छी तरह समझ रहे थे कि यह लड़की क्या करना चाहती है। जब ही मुलाजमा को हुक्म देते डाइनिंग हॉल में चल दिए। कुछ देर पहले जो माहौल कुछ कशीदा हुआ था अब नॉर्मल हो चुका था। आप ही आरिश भाई लंदन चले गए, अशहर ने संजीदगी से बताते उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा। क्या, कब, अचानक, इसलिए? हुनैन सुनकर शॉक्ड थी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो, सानिया बेगम ने शिकवा किया। नहीं चाची, मुझे तो पता होता तो कम अज़ कम उसे समझाती कि वलीमा तो अटेंड करके जाए। हुनैन ने हैरत से कहा, वाकई नहीं पता तुम्हें? हमें लगा तुम सब जानती हो, हम तो खफा भी थे तुमसे इसी वजह से। शाहसा बेगम ने शर्मिंदगी से कहा, अरे मुझे मुझे पता था मम्मा, आरिश ने हुरैन और आप सबको बताने से मना किया था, मैं मजबूर था, बता नहीं सका। हमदान ने हुरैन की बात काटते हुए तफसील बताई। बेटा तुम उसे समझाते भला, हम कैसे रहेंगे उसके बगैर, वो तो खुद कभी दूर नहीं रहा हमसे। सानिया बेगम फिर से आपदीदा हो गई थी। फिर भी बताना तो चाहिए था उस आग के गोले को। हुरैन बुरी तरह तपी थी, उसके अंदाज पर हमदान समेत सबको हंसी आ गई थी। शर्म करें अपिया, अब तो शादी हो गई है आपकी, अब तो बख्श दें आरिश भाई को, अशर ने उसे छेड़ते हुए कहा। भाई शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान जीना ही छोड़ दे, हूर पे तो वैसे भी ऐसी ही अच्छी लगती हैं। हमदान ने प्यार से कहते अपनी हूर की साइड ली। हाँ तुम भी बस कर दो उसका चमचा बनना, हुरैन ने भी तो नक्कर कहते अशर को चिढ़ाया। सब हंसने लगे। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ और वहाँ पर परदेश में आरिश तन्हा रह गया था। वलीमे का फंक्शन भी बहुत अच्छे से गुजर गया था। हुरैन वाइट फेरी टेल फ्रॉक में बहुत हसीन लग रही थी, सर पे टिके वाइट दुपट्टे के साथ। गर्दन और कानों में नफीस सा डायमंड सेट भी हुरैन के आगे मान पड़ रहा था। फंक्शन के दौरान ही हुरैन फबीहा को अच्छी तरह समझ गई थी कि वो किन नज़रों से हमदान को देख रही थी, लेकिन तसल्ली इस बात की थी कि हमदान ने उसे नज़र उठाकर देखना तक गवारा नहीं किया था। वो तो अपनी हूर के हुस्न में खोया हुआ था। दिन गुजरते जा रहे थे और हुरैन के लिए बड़ा इंकशाफ हुआ कि फबिया हमदान के घर में ही रहती है। हुरैन की मम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तभी गज़नफर साहब ने उसे कॉल करके घर आने को कहा था। हमदान, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़।
हुरैन की आवाज़ से फिक्र साफ झलक रही थी। हो डेयर, अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वापसी पर पिक कर लूँगा। हाँ। हमदान अपनी मजबूरी से आगाह करते उसके जवाब का इंतजार करने लगा। इट्स ओके, लेकिन हमदान, मैं मम्मा के पास ही रुक जाऊँ आज प्लीज़। हुरैन को पता था वो उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ लिया। हाय, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? सारा दिन ऑफिस रहो और रात को भी तुम्हें नहीं देखूंगा तो जान निकल जाएगी मेरी। वो बेचैन हुआ था। हमदान, फिर आपने फजूल बात की जाए, अब तो मैं पूरा हफ्ता नहीं आऊंगी वापस। वो मुंह फुलाए खुफकी से बोली। ऐसे कैसे? मैं उठा कर ले आऊंगा, वो भी सबके सामने, आखिर को इकलौती बीवी हो मेरी। हमदान ने उसे छेड़ते हुए धमकी चढ़ाई। अच्छा आज रुक जाओ, जस्ट मम्मा की वजह से इजाज़त दे रहा हूँ, हमदान ने जताते हुए कहा। लव यू हमदान, हुरैन खुशी से कहकर कॉल कट करते तैयार होने लगी। हमदान ऑफिस से लेट घर आया था। चाय पीने का सोचकर उसने किचन का रुख कर लिया। किचन में दाखिल होते ही उसकी नज़र फबीहा पर पड़ी जो पानी पी रही थी। हाय हमदान, कैसे हो? आजकल तो नज़र ही नहीं आते घर में, खैर तो है? फबीहा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। जाहिर है आज हुरैन घर जो नहीं थी। हे फैब, मैं ठीक हूँ, हमदान ने खुद को नॉर्मल रखते मुख्तसर जवाब दिया। आई नो माई डियर, मेरे साथ तुमने ठीक ही होना है, फबीहा ने मकरूब मुस्कुराहट सजाए उसके करीब होते कहा। फैब बकवास बंद करो अपनी और ज़रा दूर हटो। वो उसे गुस्से से कहते खुद ही पीछे को हुआ। चाय कप में डालने के लिए कप रखा ही था कि फबीहा ज़बरदस्ती उसके सीने से जा लगी। हमदान की कमर किचन के दरवाजे की तरफ थी, जबकि फबीहा का रुख दरवाजे की तरफ। ये सब शैतानी फबीहा ने इतनी जल्दी में की कि हमदान कुछ समझ ही ना सका। उसने जोर से धक्का देते फैब को खुद से दूर किया। हाउ डे यू, वो धाड़ा था। अभी उसने कुछ और कहने को लब खोले ही थे कि सामने खड़ी हुरैन को देखकर एकदम उसका सांस रुक गया, जो हैरान खड़ी अपने सामने का मंजर देख रही थी। ओह, बीवी को देखकर मुझे छोड़ दिया, और पिछले आधे घंटे से जो मुझसे चिपके हुए थे वो क्या था? फबीहा हुरैन को देखते ही अपनी औकात दिखाने लगी। वो बेशर्मों की तरह आग लगाने में मसरूफ थी। जोरदार थप्पड़ की आवाज किचन समेत पूरे हॉल में गूंजी थी। हमदान उसे देखकर रह गया था। हुरैन के जोरदार थप्पड़ ने उसका गाल सुन कर दिया था। हुरैन, मेरी बेटी को हाथ लगाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? शाहीन, जो वली आफिंदी और सहर के साथ लाउंज में दाखिल हुए थे, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो जो अपने गाल पर हाथ रखे शॉक्ड खड़ी थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फबीहा को और शह मिली। वो मजलूमियत की देवी बनी खड़ी हो गई। देख रहे हैं भाई अपनी बहू की बदतमीजी? शाहीन बेगम खूनखार नजरों से हुरैन को घुड़ती कह रही थी। यही थप्पड़ अगर आपने अपनी बेटी को लगाया होता तो हुरैन को उसे तमीज़ सिखाने की ज़रूरत ना पड़ती। हमदान की आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त। वो भला कैसे हुरैन का साथ ना देता? उसने बीवी होने की हैसियत से बिल्कुल ठीक किया था। ऐसे लोगों को अगर वक्त पर उनकी औकात दिखाते आगे जाए, आगे के लिए शैतानी करने के तमाम दर बंद हो जाते हैं। और खास कर अगर शौहर साथ दे तो उनका खूबसूरत घराना ऐसी साजिशों से बच सकता है। ऐसा ही हुरैन और हमदान ने किया था। ये अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती आप? हुरैन ने फबीहा की तरफ देखते हुए कहा। तमीज़ सिखाएं इसे फूफो और बाबा, आज और अभी ये लोग हमारे घर से जा रहे हैं। अगर ये नहीं गए तो मैं हुरैन को लेकर चला जाऊंगा। हमदान अपना फैसला सुनाता किचन से निकल चुका था। चाय वहीं शेल्फ पर रखी रह गई थी। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? 4 दिन की आई लड़की ने ऐसा क्या भड़का दिया कि हमसे इतने मुतनफिर हो रहे हो? शाहीन से इतनी बेइज्जती कहाँ बर्दाश्त होनी थी? ये देख ले फूफो, खुद समझ आ जाएगा, हुरैन अपना मोबाइल शाहीन के सामने करते कह रही थी, जिसकी स्क्रीन पर कुछ देर पहले की वीडियो चल रही थी जो फबीहा के इरादे भांप कर हुरैन ने चुपकर बनाई थी। इसमें साफ नजर आ रहा था कि हुरैन का हाथ किस वजह से उठा था। वीडियो देखते ही शाहीन का सर शर्म से झुक गया था। मामा, ये झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं। अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ चुका था। मामा, वो हैरत से माँ को देखे गई। शट अप, कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी? वो वाकई अपनी बेटी की हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी। भाई मुझे माफ़ कर दें। हुरैन बच्चे, आप भी मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं मैं गुस्से में क्या कुछ कह गई। शाहीन नम आंखों से कह रही थी। फुप्पो, ये आप क्या कह रही हैं? छोटों से माफ़ी नहीं मांगा करते, और बाज़ औक़ात कमी तरबियत में नहीं होती, इंसान की नेचर का भी बड़ा हाथ होता है बिगड़ने में। हुरैन इन्हें सोफे पर बिठाते कह रही थी। ठीक कह रही हैं आप बेटा, लेकिन अफसोस मैं अपनी ही औलाद को समझ ना सकी। वो अफसरदा हुई। भाई आप हमारी टिकट्स करवा दें, हम कल ही वापस अमेरिका जा रहे हैं। शाहीन भी अपना फैसला सुना चुकी थी। फबिया सबके बीच शर्मसार सी खड़ी थी। बदले की आग उसके दिल में ठाठे मार रही थी। आरिश लंदन आ तो गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हुरैन की मोहब्बत जो सालों से उसके दिल में घर किए बैठी थी, उससे निकलना बहुत मुश्किल है। सारा दिन मसरूफ रहने के बावजूद भी हुरैन उसके हवासों पर बुरी तरह सवार रहती थी, और ये एहसास उसे अब हुआ था
کہ یہاں آنے کے بعد حرین کے لیے اس کی محبت میں مزید شدت آ گئی۔ کیا کر دیا ہے تم نے حور؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ معافی مانگ تو رہا تھا، غلطی ہو گئی تھی، اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ اپنا نام کسی اور کے ساتھ کیسے منسوب کر سکتی ہو تم حور؟ تمہیں تو عارش کا ہونا تھا۔ وہ خود سے باتیں کرتا حور نامہ پھر سے دہرا رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا مشغلہ تھا۔ نیند پیسے بھی حور نے اسے چھین دی تھی۔ حور تم نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، عارش اس کی تصویر دیکھتے کہہ رہا تھا۔ وہاں اس کی دوستی ذیشان سے ہو گئی تھی جو اس کا روم میٹ تھا۔ شام بھر عارش کا زیادہ وقت ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ماہا جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی، عارش کی خاموش طبیعت اسے کچھ خاص پسند نہ تھی۔ یہ کتنا عجیب انسان ہے، پتہ نہیں کہاں کھویا رہتا ہے، وہ افرا سے کہہ رہی تھی۔ عجیب کیا اس میں بھائی، اچھا بھلا ڈیشنگ بندہ ہے۔ کاش افرا جو پہلے دن سے ہی اس کی دیوانی تھی اسے حسرت بھری نگاہ سے تکتے کہہ رہی تھی۔ فضول باتیں نہ کیا کرو افرا۔ ماہا کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ چلو چل کر پوچھے تو یہ ہے ہی ایسا یا اپنا امیج بنانے کے لیے ڈرامے کرتا ہے؟ ماہا کو عارش کی پر اسرار طبیعت کو جاننے کی بے چینی تھی۔ ہیلو، وہ اب عارش کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہائے جواب شان کی طرف سے آیا تھا جس پر ماہا جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی، جبکہ عارش نے اس کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کیا تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ شان سے تو تھوڑی بہت بات چیت ہو جایا کرتی تھی لیکن عارش سے بات کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو عارش، ماہا نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ عارش نے سر اٹھا کر اسے سرسری سا دیکھا۔ ہیلو کہتا پھر سے کتاب میں جھانکنے لگ گیا۔ ماہا کا دل چاہا اسے ایک جھاپڑ رسید کرے۔ اتنا بھی کیا ایٹیٹیوڈ بھلا، یہ اتنا روڈ بیہیو کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ ماہا بری طرح تپی تھی۔ مجھ سے مخاطب ہیں آپ؟ عارش نے اپنے کام میں مصروف رہتے پوچھا۔ جی بالکل، آپ ہی کوئی بڑے ایٹیٹیوڈ بوائے بنے بیٹھے ہیں یہاں، ماہا نے چڑھ کر کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو جانتا تک نہیں، دوسری بات آپ کو جاننے مجھے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، اور تیسری بات آئندہ براہ مہربانی اس طرح مجھ سے فری ہونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ وہ تحمل سے کہتے جانے لگا۔ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں؟ ماہا کو اپنی اس عزت افزائی پر آگے لگ گئی تھی۔ وہ دانت پیسے کہہ رہی تھی، وہی جو مجھے خود کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔ بلٹی ایروگینٹ۔ ماہا بھی تن فن کرتی کیفیٹیریا کی جانب چلتی تھی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، بندی صرف ہائے ہیلو ہی کرنا چاہ رہی تھی، کر لیتا، تیرا کیا جاتا تھا؟ شان اسے کوس رہا تھا۔ تمہیں اتنا شوق ہے تو تم کر لو ہائے ہیلو۔ عارش اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتے کہہ رہا تھا۔ یار پاگل ہے تو اتنی خوبصورت لڑکی خود چل کر تیرے پاس آئی تھی، تو نے وہ نہیں سنا کہ آتی ہوئی لکشمی کو ٹھکرایا نہیں کرتے؟ شان اپنی ہی انداز میں ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اپنے گھر میں بہن ہو تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ عارش کا لہجہ اس بار تھوڑا سخت تھا جو شان کو شرمندہ کر گیا تھا۔ عارش بظاہر اپنی اسپیشلائزیشن میں مصروف تھا۔ عارش کی فیملی اسے بے حد مس کرتی۔ حرین ہمدان کی محبت سے بھرپور زندگی گزار رہی تھی۔ اب تو ننھے مہمان کی آمد کی خبر نے ہمدان اور حرین دونوں کی فیملیز کی زندگی میں نیا رنگ بھر دیا تھا۔ جہاں ہمدان اللہ کا شکر گزار تھا، وہیں حرین بھی اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ فبیہا اور اس کی ماما کو کسی وجہ سے کچھ دن مزید ہمدان کے گھر ہی رکنا پڑ گیا تھا، اور آج انہوں نے بلاخر روانہ ہونا تھا۔ حرین ٹیرس پر کھڑی تھی جب فبیہا ناک کرتے اس کے روم میں آ گئی۔ تم یہاں؟ حرین کو اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا جب فبیہا حرین کے کمرے میں آئی تھی۔ ہمدان اسے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ حرین آئی ایم سوری، مجھ سے پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا۔ فبیہا حرین کو دیکھتے سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، اٹس اوکے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ اچھی بات ہے۔ حرین نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ ہاں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، جبھی میں اپنی غلطی سدھارنے آئی ہوں۔ فبیہا کے لہجے اور انداز میں حرین کو وہی مکروہ شیطانی ارادے نظر آئے۔ حرین کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ فبیہا نے اسے وہیں روک لیا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے حرین، ذرا مجھے غلطی پوری طرح سدھارنے تو دو۔ اس کے لہجے میں شیطانیت بھری تھی۔ فبیہا یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو مجھے۔ حرین ایک دم سے خوفزدہ ہو کر اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی۔ آج کے بعد ہمدان صرف میرا ہوگا، بائے ڈیئر حرین، وہ اسے چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حرین کی آنکھوں میں خوف تھا۔ حور، میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمدان کے الفاظ بے ساختہ اسے یاد آئے۔ ہمدان سے جدائی اس کے ساتھ جڑی ننھی جان کی سانسیں ایک پل میں سب سوچتے حرین کی آنکھیں خوف سے بھیگ گئی تھیں۔ حور، ہمدان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تھی اور وہ اسے ٹیرس سے دھکا دے چکی تھی۔ نہیں۔ ہمدان واش روم سے فریش ہو کر نکلتا۔ ہمدان حرین کی گھبرائی آواز پر ٹیرس کی طرف لپکا، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہمدان کے دماغ میں ٹیرس کا جو منظر گھوم رہا تھا وہ بہت خطرناک تھا۔ یا اللہ خیر ہو۔ ہمدان ٹیرس کی طرف بھاگا جہاں فبیہا ایک بار تو حرین کو دھکا دینے میں ناکام ہو چکی تھی، اور اب وہ دوسری بار اپنی پوری قوت کے ساتھ حرین کو دھکا دینے آگے بڑھی تھی۔ جیسے ہی فبیہا نے حرین کو دھکا دینا چاہا، ہمدان نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر
हुरैन को अपनी तरफ खींचा और नतीजे में फबीहा, जो पूरी जान लगाकर हुरैन से जान छुड़ाने के ख्वाब सजाए उसे धक्का दे रही थी, ना संभलते हुए खुद टेरेस से नीचे जा गिरी। हुरैन खौफजदा सी हमदान के सीने पे सर रखे रोए जा रही थी, जबकि हमदान फबीहा की हरकत पर हैरान खड़ा था। फबीहा अचानक हुरैन को होश आया तो वो बेयकीनी की कैफियत में टेरेस की तरफ लपकी। हमदान का दिमाग भी इस वक्त जागा, जो हुरैन को खो देने के खौफ से सुन्न हो चुका था। टेरेस से दोनों ने नीचे देखा तो फबीहा बेसुध सी पड़ी थी, खून बहे जा रहा था। फबीहा ने जो गड्ढा हुरैन के लिए खोदा था वो उसी में खुद जा गिरी थी। हमदान और हुरैन जल्दी से नीचे की जानिब दौड़े, तब तक वहां सर्वेंट्स भी जमा हो चुके थे। हुरैन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती लॉन तक आई थी। शाहीन बेगम और सहर को भी सर्वेंट्स ने इत्तला पहुंचा दी थी। सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। शाहीन बेगम कभी ऊपर टेरेस की जानिब देखती, कभी अपनी बेटी को, जिसकी सांसें अभी चल रही थीं। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? मुझे पता है, तुमने धक्का दिया है मेरी बेटी को टेरेस से। जा तो रहे थे हम यहाँ से। वो हुरैन को कोसती आगे बढ़ी थी। फूफो, बेहतर है होश में रहकर बात करें, और कौन किसको गिरा रहा था ये अपनी बेटी से पूछिएगा। शाहीन को हुरैन की तरफ बढ़ते देख हमदान हुरैन के सामने आ खड़ा हुआ था। वो खूनख्वार नजरों से देखता इन्हें वार्न कर रहा था। शाहीन बेगम ने कुछ कहने को लब खोले, जभी एम्बुलेंस आ गई। शाहीन, मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे। सहर ने शाहीन को एम्बुलेंस में बैठते देखकर कहा, इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुआ करें मेरी बच्ची को कुछ ना हो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुस्से से कहते वो फबीहा को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। हमदान, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सहर परेशान सी अपने बेटे को देखकर पूछ रही थी। मम्मा, फबीहा बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसने हूर और मेरे इस मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं। अगर मैं हूर के पास ना पहुंचता तो वो इसे। हमदान के अल्फाज मुंह में ही रह गए। उसकी आंखें नम थीं। हूर को प्यार भरी निगाह से देखते हमदान ने मजबूती से उसका हाथ थाम दिया, जैसे अगर हाथ छूट गया तो मर जाएगा। मम्मा, फबीहा मेरे रूम में आई थी। उसने कहा उससे गलती हो गई है, उसे सुधारने आई है। हमदान को रूम में ना पाकर उसे लगा होगा हमदान रूम में नहीं है, जब भी उसने मुझे टेरेस से धक्का देने की कोशिश की। मैं किसी तरह उसके हिसार से निकल गई, लेकिन इस पर तो शायद कोई जुनून सवार था। उसने दोबारा धक्का देने की कोशिश की तो हमदान ने मुझे बचा लिया और वो नीचे गिर गई। मम्मा, उसे कुछ नहीं होगा ना? उसने सहर की तफसील बताते हुए पूछा। हुरैन को फबीहा के लिए अफसोस हो रहा था। जो भी था, हुरैन का दिल इतना सख्त नहीं था। कुछ नहीं होगा उसे। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी हूर के साथ जो करने की कोशिश की है उसका हिसाब उसे चुकाना होगा। हमदान की आंखें आग बरसा रही थीं। ये लड़की इतनी गिर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये वही फैब है, सहर ने अफसरदगी से कहा। मम्मा, आप हॉस्पिटल जाएं। फूफो जितना भी कहें आपने वहीं रहना है। ख्याल रहे फैब कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। हमदान मम्मा से कहते हूर को रूम में ले आया था। सहर भी हॉस्पिटल निकल गए। मुझसे सवाल करने की तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? वो उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते धाड़ा था। आंखों में जैसे खून उतरा था। हमदान, हुरैन उसकी धाड़ पर काम कर रह गई। बेयकीनी की कैफियत में उसे सिर्फ इतना ही कहा गया, आइंदा मुझसे सवाल करने से पहले 1000 बार सोचना, और खबरदार फबीहा के बारे में कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला तो तुम्हारी ये खूबसूरत जुबान कुछ कहने के लायक नहीं रहेगी। वो गुस्से से कहता उसे बेड पर धक्का देता रूम से निकल गया, जबकि हुरैन हमदान का ये नया रूप देखकर दंग रह गई थी। आंसू थे कि तवातर से बहे जा रहे थे। हूर, आरिश उसे जोर से पुकारते उठ बैठा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा ख्वाब था? हूर ठीक तो है? कहीं हमदान उसके साथ? नहीं नहीं, हूर ठीक होगी। वो खुद को तसल्ली देते मोबाइल पर हूर का नंबर डायल कर चुका था। हूर कैसी हो? आरिश ने कॉल अटेंड होते ही पूछा। हूर बिल्कुल ठीक है। आरिश, इतने घबराए हुए क्यों हो? दूसरी जानिब हमदान को पाकर आरिश को और तशवीश हुई। कुछ नहीं, बस हुरैन की याद आ रही थी तो सोचा बात कर लो। हुरैन कहाँ है? आरिश ने जांचते अंदाज में पूछा। हूर, किसकी कॉल है? हमदान। हमदान अभी जवाब देने को था कि हूर की आवाज़ आरिश के कानों में पड़ी। लेंजी जाग गई। हूर, लो बात करो। हमदान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल हुरैन को पकड़ाया। हेलो। हूर की आवाज़ से आरिश के दिल को अंदर तक तस्कीन पहुंची थी। वो जो कल उसके इश्क की मुंतजिर थी, आज मुनकरे इश्क हो गई थी। हाँ, उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो हमदान के साथ खुश, उसके इश्क में मुतमईन है। कैसी हो हूर? आरिश चाहता था वो आज भी उसे इसी तरह अपना हाल बताए जैसे पहले बताया करती थी। लड़ती झगड़ती लेकिन उसे हर बात बताती। इसी हूर से बात करने की तड़प दिल में जाग उठी थी। मैं ठीक हूँ आरिश, तुम कैसे हो? हुरैन की आवाज़ में आज रोनुमा हुए वाकई की वजह से ज़रा सी परेशानी शामिल थी। मैं बहुत खुश। आरिश ने अपना दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश की। पता चल रहा है जितने खुश हो, हुरैन ने नॉर्मल रहते हुए कहा, लेकिन आरिश को लगा जैसे हूर ने उसके दिल पर चोट की हो। तंज कर रही हो? आरिश पूछे बिना ना रह सका। मैं भला क्यों करने लगी तंज? खैर सुनाओ, वहाँ कोई गोली तो नहीं सेट कर ली? हाँ, जिसकी खबर घर में पहुंचाने के लिए। आग के गोले को मेरी हेल्प चाहिए।
हुरैन ने उसे छेड़ते हुए पूछा। हमदान को उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई, जबकि आरिश बुरी तरह चिढ़ा था। क्या फारिक जोक मारा है? मेरे दिल की सिर्फ एक ही दुश्मन जान है और उसे बहुत अच्छी तरह जानती हो। आरिश ने शरारती मुस्कुराहट सजाए उसे छेड़ते कहा। शट अप आरिश, फजूल हाँकने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अच्छा, हूर को उसकी बात पर करंट ही तो लगा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। आरिश ने कहका लगाते उसके बिगड़ते तेवर देख बात बनाई। आप प्लीज दफा हो जाए। बाय। हुरैन उसकी क्लास लेते मुंह बसोरती कॉल कट कर चुकी थी। हूर, आरिश का जुमला मुंह में ही रह गया था। बेवकूफ लड़की, क्या कर दिया मेरे साथ तुमने? वो मोबाइल स्क्रीन को तकते कह रहा था। हुरैन से बात करके उसे बहुत सुकून मिला था। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर अल्फी की तरह चिपक गई थी। नाश्ते पर फबीहा की तरफ से की गई कार्रवाई से अशर उसे आगाह कर चुका था। जब ही आरिश ने हुरैन की फिक्र में ऐसा ख्वाब देखा था। खुद तो वो एक बार हुर का दिल तोड़ चुका था, लेकिन कोई और हुर का दिल दुखाए ये उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। हुर से बात करके उसे अब तसल्ली हो गई थी कि हमदान उसे कभी दुखी नहीं कर सकता। पेशेंट को होश आ गया है, नर्स ने आकर बताया तो शाहीन और सहर की सांस में सांस आई। फबीहा की टांग फ्रैक्चर हो गई थी और सर पर चोट आई थी। कुछ खराशें चेहरे और बाजू पर आई थीं। खून काफी बह गया था, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सहर सारी तफसील शाहीन को बता चुकी थी, लेकिन वो माँ थी, जब तक अपनी बेटी के मुंह से सच ना सुन लेती उन्हें यकीन कहाँ आना था। कैसी है मेरी बेटी? शाहीन बेगम ने रोते हुए उसके माथे पर प्यार करते पूछा। अब की बार फबीहा ने शर्मिंदगी से रुख मोड़ लिया। मम्मा, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ, फबीहा ने रोते हुए कहा। वो वाकई शर्मिंदा थी। फबीहा बीबी कौन है? शाहीन ने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी पुलिस ऑफिसर रूम में दाखिल होते पूछ रही थी। जी मेरी बेटी है। फबीहा क्यों पूछ रही हैं इसका? शाहीन को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। इनके खिलाफ एफआईआर फाइल हुई है। पुलिस ऑफिसर के जुमले पर जहां शाहीन हैरान हुई थी, वहीं फबीहा की रीढ़ की हड्डी तक सुन हो गई थी। सहर खामोश खड़ी सब देख रही थी। वो जानती थी हमदान ऐसे इसे छोड़ने वाला नहीं था। सहर ये क्या कह रहे हैं? हमदान ऐसा नहीं कर सकता। शाहीन फटी फटी आंखों से सहर को देखती हैरत और खौफ से कह रही थी। ये तो होना था शाहीन। फबिया ने छोटी हरकत नहीं की। इस बार हमदान उसे किसी सूरत माफ नहीं करेगा। जवाब वली आफिंदी की तरफ से दिया गया था, जो कि कमरे में दाखिल होते शाहीन की बात सुन चुके थे। जो लोग दूसरों की खुशियों के दुश्मन बने फिरते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम इससे भी दर्दनाक और अजियतनाक होना चाहिए। वली आफिंदी गुस्से से गोया हुए। भाई, आप तो ऐसा ना कहें प्लीज, हमदान को समझाएं। मेरी बेटी इस हालत में नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। शाहीन रोते हुए हाथ जोड़े खड़ी थी। आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो आप लोग कमरे से जा सकते हैं। हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तिब्बी मुआयने के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा इन्हें। पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहती, साथियों को इशारा करते इन्हें बाहर निकाल चुकी थी। भाई, तरस नहीं आ रहा आपको मेरी बच्ची पर, मेरी हालत पर? शाहीन रोते हुए बोली। तर्स मजलूम पे खाया जाता है, ना कि जालिम पर, वली आफिंदी दुरुस्तगी से कहते वहां से जा चुके थे, जबकि सहर शाहीन को सहारा देते संभाल रही थी। पापा, मैं आपसे नाराज। हमदान की गोद में बैठी नन्ही मीरब मोटी मोटी आंखें मटकाते हमदान को नखरे दिखा रही थी। अरे मेरी डोल, मुझसे किस लिए नाराज है भाई? हमदान ने मीरब के गाल पे प्यार करते हुए मुस्कुराते हुए पूछा। आप आपने इतने सारे दिन लगा दिए और कल मेरा बर्थडे भी है और आपने मुझे शॉपिंग भी नहीं करवाई। मीरब अपनी इसी अदा से आंखें मटकाते शिकायती अंदाज में कह रही थी। ओ तो ये बात है, बिल्कुल अपनी मम्मा पे गई हैं आप, पता है? वो कहका लगाते हुरैन को आंख मारते कह रहा था। हुरैन भी उसकी इस बात पर मुस्कुरा दी। पता है, मीरब मुस्कुराते हुए कह रही थी। मम्मा और पापा दोनों ही मीरब के फेवरेट थे और मम्मा जैसी होने पर तो वैसे ही उसे फख्र था। शॉपिंग पर शाम को चलना है ना मेरी डोल, फिर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, हमदान ने प्यार से कहा। तो मीरब नन्हे हाथ से हमदान के हाथ पर ताली मारकर हंसते हुए दादो को बताने भाग गई। हाय, शौहर थका हारा घर लौटा है, पर मजाल है कि नजरे करमील डाल दे मासूम पे। हमदान हुरैन का हाथ पकड़ते शोख लहजे में बोला। इतना ख्याल था तो क्या जरूरत थी इतने दिन लगाने की? मुझे नहीं बात करनी, जाएं आप यहाँ से। हुरैन भी हाथ झटकते नाराजगी का इजहार कर रही थी। जहां हमदान हुरैन और मीरब के बगैर नहीं रह सकता था, वहीं हुरैन का भी यही हाल था। लो जी, पहले बेटी को मनाया पूरा घंटा लगाकर, अब बेगम साहिबा को मनाओ, हमदान ने मजलूम शक्ल बनाते कहा। अच्छा, अब ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं, मैंने बहुत मिस किया, स्पेशली आपके साथ लॉन में बैठकर चाय पीना, हुरैन ने प्यार जताते कहा। लो भला, इसमें क्या बात है, अभी चलकर चाय पीते हैं लॉन में। वो हुरैन का हाथ थामे रूम से निकलकर मेट को चाय का कहता लॉन में चल दिया। हमदान आज ही पेरिस से मीटिंग अटेंड करके घर पहुंचा था। मीरब की पैदाइश के बाद हमदान पहली बार इतने दिन के लिए कहीं गया था। मीरब की पैदाइश को 2 साल होने वाले थे। फबीहा से जान छूटने के बाद हमदान और हुरैन की जिंदगी बहुत पुरसुकून हो गई थी। फिर मीरब की पैदाइश ने उनकी जिंदगी में नए रंग भर दिए थे। मीरब
मम्मा पापा के साथ ही दादा और दादों की भी जान थी। उसकी कुलकारियों से घर में रौनक लगी रहती। शास्ता बेगम, सानिया बेगम, गल्लनफर साहब और ज़ियाफत साहब सबको ही मीरब की हूर की तरह अजीज थी। सभी मीरब का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थे। अरे ये फ्लावर्स यहाँ सेट करने हैं पिलर के पास, और वो ब्लू बलून्स वहाँ लगाने हैं। अशर डेकोरेटर्स को इंस्ट्रक्शन देते कह रहा था। हाँ भाई, तैयारी कहाँ तक पहुंची? 5 बजने वाले हैं। 8 बजे केक कट होना है, पता है ना? शास्ता बेगम पुरजोश होते पूछ रही थी। जी जी चची बेगम, सब हो जाएगा, टाइम पर फिक्र ही ना करें, अशर ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरब की बर्थडे की तैयारी जोरों शोर से जारी थी। सभी अपनी डोल का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए काम में लगे हुए थे। मम्मा, मेरे ये जल्दी से बना दें। मेरा मीरब अपना स्नो वाइट स्टाइल फ्रॉक उठाए फिर से हीरोइन के सामने खड़ी थी। ये सुबह से उसका 20वां चक्कर था। उफ मीरब मेरी जान, अगर मैं आपको अभी ये फ्रॉक पहना दूंगी तो केक कटने तक मेरी फेरी का फ्रॉक गंदा हो जाएगा ना। फिर मीरब की पिक्स कैसे अच्छी आएंगी? हाँ, हुरैन ने उसे प्यार से समझाया। ओ मम्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मीरब माथे पे हाथ मारते आंखें मटकाती कह रही थी। उसके अंदाज पर हुरैन ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। माशाल्लाह मीरब, आप बहुत क्यूट हो। हुरैन को अपनी छोटी सी डोल पर बेपनाह प्यार आ रहा था। क्यूट तो मेरी डोल भी कम नहीं। वैसे हमदान की आवाज़ पर हुरैन ने दिलकश मुस्कुराहट सजाए पलटकर उसे देखा। बहुत बातें बनानी आती हैं आपको, रेडी हो जाएं आप जल्दी से। हुरैन उसे कहते रूम से निकल गई। देखा कितनी जालिम है आपकी मम्मा, हमदान मीरब के गाल पर किस करते हुए कह रहा था। जालम मम्मा अभी दादों को बता कल आई। मीरब एक्साइटेड होती जालम मम्मा का विर्द करती दादों को बताने भाग गई थी। 6 माह पहले आरिश के एग्जाम सर पर थे, सो वो अपनी तैयारी में बुरी तरह मसरूफ हो गया था। माहा और आरिश के दरमियान उस दिन के बाद से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आरिश शान से माहा के बारे में सुनता रहता था। माहा उसे अच्छी लड़की लगी थी। माहा भी अंदर ही अंदर आरिश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो आरिश को चुपके चुपके देखती रहती। पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश थी आरिश में जो माहा को अपनी तरफ खींचती चली गई। माहा उसके सामने बेबस हो गई थी। जिस दिन उसे ना देखती दिन गुजारना उसे महाल लगता। एग्जाम्स का लास्ट डे आन पहुंचा था। माहा भी किसी फैसले पर पहुंचकर आरिश के सामने आ खड़ी हुई थी। ये उनकी यूनिवर्सिटी का लॉन था, सर्द मौसम, महकते फूल और सामने खड़ी माहा। एक पल को आरिश को हुरैन की याद ने आ घेरा। अगले ही पल उसने सर झटक कर माहा को हैरत से देखा। यस, कोई काम है? आरिश ने बेजारी से पूछा। मुझे बात करनी है तुमसे, माहा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ओके जल्दी कहो, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहता इधर उधर देखने लगा। आरिश, आई लव यू, माहा ने आगे बढ़कर आरिश का हाथ थामते कहा। आरिश को तो यकदम जैसे करंट लगा था। व्हाट? आरिश एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हैरत से उसे देखे गया। आरिश के यूं हाथ छुड़ाने पे माहा को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। आई एम सो सॉरी आरिश, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अगर मैं तुमसे आज ना कहती तो शायद ही कभी सुकून से रह सकती। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और बात हिम्मत करके तुमसे बात करने का फैसला किया है। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना, प्लीज़। वो भीगी आंखों से उसे देखते कहे जा रही थी। आरिश की आंखों में फिर से वो मंजर घूम गया था जहां हुरैन उसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। कितनी हिम्मत जुटाई होगी उसने पहल करना, कितना मुश्किल होता है उसका अंदाज़ा तो आरिश को भी था। आखिर इतनी बड़ी सज़ा जो भुगती थी उसने, उसको याद आया कैसे हुरैन की फीलिंग्स हर्ट करके उसने उसे आंसू दिए थे, कैसे उसे हमेशा के लिए खो दिया था उसने हुरैन को। वो रोती हुई आंखें आज भी उसके दिलो दिमाग में नक्श थीं। माहा आरिश के जवाब की मुंतजर खड़ी थी। बैठकर बात कर सकते हैं हम? आरिश ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा तो माहा की भी सांसें बहाल हुई। क्यों नहीं, माहा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पास ही रखे बेंच पर बैठ चुके थे। कुछ देर सर्द हवा के झोंकों में खामोशी उनके साथ रही। फिर आरिश ने ही स्कोत तोड़ा। क्या जानती हो मेरे बारे में? आरिश उसकी तरफ देखे बगैर उससे मुखातिब हुआ। ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जानना चाहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे मोहब्बत है तुमसे। माहा उसकी तरफ देखते कह रही थी। लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत है, आरिश ने नरमी से कहा। लेकिन माहा का दिल किसी चनाके से टूटा था। वो उसे देखकर रह गई। जान सकती हूँ किससे? वो भीगी आंखों से देखती उससे पूछ रही थी। हूर, हूर से। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आरिश ने सर्द आह भरी। लेकिन माहा ने उसे खामोश बैठे देख पूछा। उसे बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो किसी और की हो चुकी है। मेरे इश्क से मुनकर होकर किसी और के इश्क में खो गई है। आरिश की आवाज़ भीगी हुई थी। उसे कदर नहीं होगी तुम्हारी, बहुत सेल्फिश होगी, वरना ऐसा ना करती। माहा हुरैन को कोसने लगी। शट अप, उसके बारे में ऐसी बकवास मैं किसी की नहीं सुनता, और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो पूरी बात जाने बगैर अपनी राय देने बैठ जाते हैं। अब की बार आरिश का लहजा सख्त था, आंखों में सुर्खी साफ वाजे थी। सॉरी, माहा ने अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा होते कहा।
اس نے بھی ایسے ہی ایک روز میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور میں نے اسے ہرٹ کیا۔ میری انا کو یہ برا لگا کہ میں کب سے اسے اپنی عشق کی انتہا نہیں بتا سکا، اور وہ لڑکی ہو کر میرے سامنے کھڑی ہنستی آنکھوں سے میرا ہاتھ تھامے مجھے کہہ رہی ہے کہ محبت ہے تم سے۔ اتنا اتنا کم ظرف نکلا کہ ایک پل میں اپنی سالوں کی محبت کا منکر عشق بن بیٹھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا روئی تھی وہ، مجھے معاف نہیں کیا آج تک اس نے۔ تمہیں پتہ ہے جب اس کی شادی ہونے لگی تو میں نے اس سے اپنے پیار کی بھیک مانگی، کتنا تڑپا تھا، گڑ گڑایا بھی تھا میں، لیکن وہ بہت آگے جا چکی تھی میری نفرت میں۔ مجھ سے نفرت کی حد یہ تھی کہ اس نے مجھے غلطی سدھارنے کا ایک موقع تک نہیں دیا، اور اچھا ہی کیا اس نے، میں یہی ڈیزرو کرتا تھا، میں ایسی ہی نفرت کے لائق ہوں۔ عارش کی آنکھیں نم تھیں، آواز بھیگی ہوئی۔ یہ پہلی بار تھی کہ عارش نے کسی کو اپنے دل کا حال بتایا تھا۔ ماہا، جانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو، لیکن میں حور کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر میں تمہاری محبت قبول کر بھی لوں تو بھی اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کیا تم ایسے انسان کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہو جس کے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی نہ ہو؟ بولو۔ عارش ماہا کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ ماہا، جو اس کی باتیں سن کر حیران بیٹھی تھی، عارش کے سوال پر چونکی۔ میری محبت تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی عارش، ماہا پر عزم انداز میں بولی۔ وہ کہتی ہے کہ محبت خوش ہے، اپنی لائف میں دیکھتے ہیں چل کر، اگر میں اسے قائل نہ کر سکا تو میں تمہارا۔ عارش نے ماہا کو دو ٹوک انداز میں کہا۔ ماہا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے ابھی کہا کہ وہ کسی اور کی ہو چکی ہے، پھر تم کس امید سے یہ کہہ رہے ہو عارش؟ ماہا نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں تمہیں کسی بات کا جواب دے نہیں، میں نے جو کہا اس کا جواب دو ورنہ تم جا سکتی ہو، عارش نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا تو میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، پاکستان میں تمہارے نام کے ساتھ جاؤں گی۔ ماہا نے اپنا مطالبہ سنایا۔ کیوں؟ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو ماہا؟ عارش حیرت سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ قبول ہے تو بولو، وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے بولی۔ ٹھیک ہے، عارش نے اس کے سامنے ہار مان لی تھی۔ گیسٹ آنا شروع ہو گئے تھے۔ میرب بھی ڈول بنی سب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میرب کے دائیں بائیں ہمدان اور حرین کھڑے کیک کٹ کرنے کی تیاری میں تھے۔ بلیک سوٹ میں ملبوس ہمدان ہمیشہ کی طرح ڈیشنگ لگ رہا تھا، اور بلیک ساڑی کے ساتھ نفیس سا ڈائمنڈ سیٹ، ساتھ ہی خوبصورت جوڑے میں بالوں کو قید کیے حرین، دونوں کی جوڑی آج تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ ابھی کیک کٹ ہونے ہی لگا تھے کہ اچانک ہال کی لائٹ آف ہو گئیں۔ یہ کیا ہوا اشر؟ دیکھو ذرا، حریم نے ساتھ کھڑے اشر سے کہا۔ ابھی اشر جانے ہی لگا تھا کہ لائٹس دوبارہ آن ہو گئیں، اور لائٹس آن ہوتے ہی سامنے کا منظر سب کو حیران کر گیا۔ عارش، حرین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عارش حرین کے بالکل سامنے ٹیبل کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ میرے بغیر کیک کٹ کرنے کا ارادہ تھا حور؟ عارش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عارش میرا بچہ، ثانیہ بیگم نے آ کر عارش کو گلے سے لگایا۔ سب عارش سے ملنے لگے، جبکہ حرین کی نظریں عارش کے ساتھ کھڑی لڑکی پر رک گئیں جو مسلسل حرین کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ حرین کو اس کی نظریں عجیب لگیں۔ ہمیشہ کی طرح اٹینشن سیکر ہی رہنا برتھ ڈے ہمدان اور میری بیٹی کا ہے، اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ آگ کے گولے۔ حرین ماہا کی نظروں کو نظر انداز کرتی عارش کی خبر لینے لگی۔ اس میں بھی وہ عارش کو یہ جتانا نہ بھولی کہ وہ ہمدان کی ہے۔ عارش بدلنے والی چیز نہیں ہے، تم تو جانتی ہو اچھی طرح، عارش نے آنکھ مارتے حرین سے کہا۔ حرین کو عارش کا انداز کچھ مشکوک لگا۔ ڈرامے کرنا نہیں چھوڑے تم نے، حرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیڈ انکل، آپ تو میری برتھ ڈے تھا کل تو کچھ نے انوائٹ کیا؟ میرب کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اپنی موٹی موٹی آنکھیں گھماتی وہ عارش کو ڈانٹ رہی تھی۔ سب اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ ہے ڈول، آپ تو بالکل اپنی مما پر گئی ہو، عارش نے پیار سے کہا۔ چلو پلیز اب کیک کٹ کرنے دیں، سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، حرین نے کہا تو سب اپنی پوزیشن سنبھال کر کیک کٹ کروانے لگے۔ کیک کٹ ہونے کے بعد سب گیسٹ ڈنر کرنے لگے۔ کیا بیوی ہے تمہاری؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ ایسے کیسے شادی کر لی؟ ہم کیا تمہیں منع کرتے؟ عارش کی بات پر ثانیہ بیگم بری طرح تپی تھیں۔ امی، اس کا کوئی نہیں ہے دنیا میں، واپسی آنا تھا اور سب اتنا اچانک ہوا کہ بتا ہی نہیں سکا، عارش نے صفائی پیش کی۔ ہے تو پیاری، لیکن تمہیں کم از کم ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ خیر بھابھی، آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم یہاں دھوم دھام سے دوبارہ اس کی شادی کریں گے، شائستہ بیگم نے خوشی سے کہا تو ثانیہ بیگم بھی خوش ہو گئیں۔ ماہا، امی کے ساتھ ہی بیٹھو، میں آتا ہوں۔ عارش ماہا کو امی کے ساتھ بٹھاتے حرین کی طرف چل دیا، جو ہمدان کے ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑی گیسٹ کو الوداع کہہ رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی ساڑی میں اتنا بھی حسین لگ سکتا ہے، عارش نے حرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اتنا بھی جھوٹا ہو سکتا ہے۔ حرین کو ہمدان کے سامنے عارش کی تعریف بالکل پسند نہیں آئی۔
تو اس نے بات بدلی۔ کیا مطلب؟ عارش نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب یہ کہ اتنے چھپے رستم ہو، یہ لڑکی کون ہے؟ خبر ہی نہیں ہونے دی کسی کو، حورین نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ماہا کی نظریں مسلسل عارش اور حورین پر ٹکی تھیں۔ بیوی ہے میری ماہا، عارش نے کہتے ہی حورین کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا۔ کیا؟ حورین کی نظریں بے اختیار ہی ماہا کی طرف گھومی، جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حورین کو اپنی طرف دیکھتے پا کر ماہا نے اچانک گھبرا کر نظریں چرائی۔ واؤ، فائنلی آپ کو بھی کوئی آپ جیسی ہی مل گئی، حورین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے واقعی خوشی ہوئی تھی۔ میرے جیسی تو خیر مجھے تب تک نہیں مل سکتی جب تک وہ خود میری نہ ہونا چاہے، عارش نے مینی خیز نظروں سے حورین کو دیکھتے کہا۔ تو حورین کی ہنسی کو ایک دم بریک لگی۔ ہمدان نے حورین کی یہ حرکت بہت غور سے نوٹ کی۔ ہمدان، میرب کو سلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی سے گیسٹ کو بائے بائے کریں نا پلیز۔ حورین ہمدان کا ہاتھ تھامے سر اس کے کندھے سے ٹکاتی کسی معصوم بچی کی طرح بولی۔ ہمدان کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ اوکے ڈیئر وائفی، ہمدان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عارش کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ عارش کی بات کا جواب حورین نے اس ادا سے دیا تھا کہ عارش کا روم جل اٹھا تھا۔ عارش حورین کا یہ انداز دیکھ کر واپس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ گھر واپس لوٹ کر بھی عارش کو ایک پل چین نہیں آیا تھا۔ حورین کو حاصل کرنے کی خواہش جانے کیوں اچانک سے زور پکڑ گئی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ حورین کسی اور کے ساتھ اتنی خوش کیسے ہے، یا یہ شیطان تھا جو میاں بیوی کو خوش دیکھ ان میں سے کسی طرح سے جھگڑے کروانا چاہتا تھا۔ شیطان کی تو سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ محبت کرنے والے میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کروا کر جدائی کروائے۔ ماہا الگ حورین سے حسد کا شکار ہو رہی تھی کہ اس کے شوہر کی توجہ کا مرکز حورین ہی رہی، اور حورین ماہا کی توقع سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے بھی ماہا عارش کے چھن جانے کا خوف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ادھر ہمدان کو بھی عارش کے رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ حور، ہمدان نے پیار سے حور کو پکارا جو ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں سمیٹ کر ڈرا میں رکھ رہی تھی۔ جی، حورین نے کام میں مگن رہتے ہوئے جواب دیا، لیکن ہمدان کے حور کہنے پر جو مسکان اس کے چہرے پر بکھری تھی اس سے ہمدان بھی مسکراتے ہوئے محفوظ ہو رہا تھا۔ عارش کا رویہ کچھ عجیب نہیں تھا آج؟ ہمدان کے پوچھنے پہ حورین نے پلٹ کر ہمدان کو دیکھا۔ اب وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عجیب کیسے؟ حورین نے انجان بنتے کہا۔ پتہ نہیں، کچھ عجیب ہی باتیں کر رہا تھا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ ہمدان نے اپنے دل کی بات کی۔ ہمدان، آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ حورین ہمدان کا ہاتھ تھامے پر امید لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ عارش کے رویے نے حورین کو بھی ڈرا دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ خود سے زیادہ بھروسہ ہے تم پہ میری حور، ہمدان نے پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے کہا۔ میں کبھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی، لیکن اگر آپ کو کبھی ایسی کوئی غلط فہمی ہو تو پلیز مجھ سے ایک بار ضرور پوچھنا، کیونکہ شیطان وسوسے ڈال کر گھر تباہ کرنے میں دیر نہیں کرتا، اور میں تو آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حورین کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور آواز بھیگ گئی تھی۔ وہ نیچے دیکھے کہیں جا رہی تھی۔ ارے یہ کیا، تم رو رہی ہو؟ پلیز ایسے مت رویا کرو، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں حور۔ وہ حورین کو روتا دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ سوری، دل بھر آیا پتہ نہیں کیوں۔ چلیں اب جلدی سے اپنے ہاتھ کی کافی پلائیں ورنہ میں پھر سے رو دوں گی، وہ اسے حکم جھاڑتی نم آنکھوں سے مسکراتے کہہ رہی تھی۔ جو حکم میری حور کا، ہمدان نے سر جھکاتے کہا تو حورین ہنسنے لگی۔ عارش اور ماہا کا ولیمہ دھوم دھام سے کر دیا گیا تھا۔ ثانیہ بیگم، شائستہ بیگم، ضیافت علی، غضنفر صاحب سمیت سبھی نے ماہا کو کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ سبھی اس کا بہت خیال رکھتے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ بچپن میں ہی اس کی فیملی کار ایکسیڈنٹ میں چل بسی تھی، جس کے بعد اس کی نانی نے اسے پالا تھا، لیکن 3 سال پہلے نانی بھی اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھیں۔ یہ سب ڈیٹیل شان بہت بار عارش کو بتا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عارش ماہا کو اس روز انکار نہ کر سکا کہ حورین کا دل توڑ کر وہ پہلے ہی عذاب میں تھا۔ اگر ماہا کا بھی دل توڑ دیتا تو اللہ کو کیا منہ دکھاتا۔ کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں میری حورین سے بات کروا دو۔ میرا موبائل خراب کیا ہوا، نہ کسی کو فرصت ہے کہ اسے سیٹ کروا دے، نہ ہی نیا فون دلانے کے لیے وقت۔ ثانیہ بیگم غصے میں اشر کی کلاس لے رہی تھیں۔ اوہ سوری، بھول گیا تھا، میرب کے لیے لان میں جھولا سیٹ کر رہا تھا نا۔ اشر نے ماں کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے میرب کا سہارا لیا۔ اچھا ہو گیا سیٹ؟ خیال سے لگوانا کہیں میری ڈول گر نہ جائے، ثانیہ بیگم نے خوشی سے پوچھتے ہوئے ساتھ ہی تاکید کی۔ جی سیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا یہ لیں، بات کریں حورین آپی سے، اشر نے جواب دیتے ہوئے موبائل ماں کی طرف بڑھایا۔ بھابھی، حورین کی ساری فیوریٹ ڈشز تیار ہیں، بس اب آپ اس کے لیے لبے شیریں بنا آئیں، جا کے اس نے خاص فرمائش کی ہے، شائستہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہی کہا۔ ہاں بس میں جلدی سے جاتی ہوں، جب سے شادی ہوئی ہے میری بچی پہلی بار رکنے آ رہی ہے، اب تو 4-5 دن روک لیں گے بس اسے۔ ثانیہ بیگم اپنے منصوبے بنانے لگیں۔ جی جی بھابھی کیوں نہیں، میں نے اس کا روم بھی سیٹ کر دیا ہے۔ شائستہ بیگم بھی پرجوش تھیں۔ مما کوئی گیسٹ آ رہا ہے کیا؟ ماہا سب کی تیاریاں دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔
अरे नहीं, गेस्ट नहीं, हुरैन आ रही है। जब से शादी हुई है एक बार भी रुकने नहीं आई, आज पहली बार आ रही है तो बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। सानिया बेगम ने मुस्कुराते हुए तफसील बताई। अच्छा, माहा को हुरैन की आमद का सुनकर कोई खास खुशी नहीं हुई। जरूर आरिश की वजह से रुकने आ रही है, वरना पहले कभी क्यों नहीं आई। माहा कुड़ते हुए सोच रही थी। अरे लो, आ गई मेरी प्रिंसेस। गजनफर साहब और ज़ियाफत अली आज घर पर ही थे। हुरैन को हॉल में दाखिल होते देख खुशी से उठ खड़े हुए। मीरब तो भागकर अपनी नानों की गोदी में जा बैठी थी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? गजनफर साहब ने उसे गले से लगाते पूछा। हमेशा की तरह प्यारी, हुरैन ने अपने अंदाज में चहक कर कहा। सबसे मिलने के बाद बातों का दौर शुरू हुआ। माहा को भी बेदिली से मुस्कुराकर मिलना पड़ा। हुरैन ने साफ महसूस किया था कि हुरैन की मौजूदगी में माहा इनसिक्योर फील कर रही है। ये आज की बात ना थी। जब भी कहीं हुरैन मौजूद होती, माहा की अजीब नजरें हुरैन के ही ताकुब में रहती। हमदान क्यों नहीं आया साथ? शायस्ता बेगम ने पूछा। हमदान मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जब यहाँ आने की परमिशन मिली है, वरना आपको तो पता है मीरब के बगैर नींद नहीं आती उन्हें। मुझे भी इसलिए नहीं आने देते, हुरैन ने जवाब दिया। मीरब के बगैर या मीरब की मम्मा के बगैर? अशर ने उसे छेड़ते हुए कहा। लगता है आरिश की कंपनी में रह रहे हो आजकल, इसीलिए छछोरापन फूट फूट के निकल रहा है। हुरैन ने अशर को घुरी मारते हुए कहा तो सबकी हंसी छूट गई। जाहिर है सभी जानते थे हमदान का दिल हुरैन के बगैर नहीं लगता था, और हुरैन मैडम साफ बहाना बना रही थी। हुरैन का चेहरा सबको हंसता देख शर्म से सुर्ख हो गया था। हमदान भाई को नींद नहीं आती आप ही के बगैर? अशर ने कहका लगाते कहा। वेरी फनी, ये आरिश कहाँ है? वैसे नजर नहीं आ रहा। हुरैन के मुंह से आरिश का नाम सुनकर माहा का दिल ऐसे धड़का जैसे हुरैन आरिश को इस पल में छीन देगी। आरिश को देखकर आपने क्या करना है? आप उससे मिलने आई हैं या घर वालों से? माहा की जुबान से बेसाख्ता अंदाज में तंजिया निकला। माहा की बात पर एकदम हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरत से माहा को देखने लगे। हुरैन को अलग हैरत का झटका लगा। अगले ही पल इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट हुरैन के लबों पर फैल गई, जो माहा को काफ़ी कुछ जता गई थी। माहा, ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम हुरैन से? सानिया बेगम का लहजा सख्त था। रहने दें चाची, आरिश की बीवी है, बात भी उसी अंदाज से करेगी, मुझे बुरा नहीं लगा। हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा। नजरें माहा पर थीं, जो कि अपनी बात पर शर्मिंदा बैठी थी। हैरत तो उसे हुरैन के पुरसकून अंदाज पर हो रही थी। जबकि हॉल में दाखिल होता आरिश माहा और हुरैन की गुफ्तगू सुनकर वहीं रुक गया था। उसे माहा से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल ना थी। अस्सलाम वालेकुम। आरिश ने हॉल में आते ही सबको सलाम किया। अरे वाह, आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। आरिश ने आते ही हुरैन को छेड़ते हुए कहा। मम्मा, ये वही बैड अंतन है ना जिन्होंने मेरी बर्थडे खराब की थी? आई डोंट लाइक दिच अंतर। मीरब अपनी मोटी आंखें घुमाते माँ से पूछ रही थी। मीरब की बात पर पूरा हॉल कहकों से गूंज उठा था। जी डोल, ये वही बैड अंकल है, एंड आई डोंट लाइक हिम टू, बल्कि आई हेट हिम। हुरैन बज़ाहिर मुस्कुराते हुए मीरब को देखते हुए कह रही थी, लेकिन असल में सुना आरिश और माहा को रही थी। हुरैन की बात पर सब फिर से हंसे थे, जबकि आरिश बुरी तरह तपा था। उसने माहा को गुस्से से घूरा। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बातें करेंगे। माहा, मेरा ड्रेस निकाल दो चलकर। आरिश माहा को बुलाता ऊपर की तरफ चल दिया। माहा भी उसके पीछे चली गई। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई हुरैन से ऐसे बात करने की? माहा के कमरे में दाखिल होते ही वो उसे कंधों से पकड़े धाड़ा था। वो आई एम सॉरी। माहा की बात अधूरी थी कि आरिश फिर से धाड़ा। शट अप। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी मोहब्बत मुझे हुरैन को भूलने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे सिर्फ हुरैन की नज़रों में मजीद गिरा सकती है, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती, समझी तुम? आरिश आपे से बाहर हुआ था। वो माहा को बेड पर धक्का देते अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि मैंने उसकी मोहब्बत की जो तजलील की थी, उसकी दास्तानें हर अरे गरे को सुना रखी हैं। मैं क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या हो माहा? आरिश ने बेबसी से माहा को देखा। सॉरी आरिश, प्लीज़ आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। माहा के चेहरे पर आरिश को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो नम आंखों से कह रही थी, मेरा दिल नहीं, हुरैन का दिल ना दुखे तुम्हारी वजह से कभी भी, समझी? आरिश ने उंगली का इशारा करते उसकी तरफ करते कहा। समझ गई। माहा आंसू साफ करते बोली। हुलिया ठीक करो अपना और नीचे चलो। वो उसे हुक्म झाड़ते चेंज करने चल दिया। आज हुरैन को यहाँ 3 दिन हो गए थे। हमदान को अभी वापस आने में 2 दिन थे। दिन में 10 बार तो हमदान हुरैन और मीरब को देखने के लिए कॉल करता कि उसकी जान जो दोनों में अटकी थी। मीरब अपने नानों के साथ सो गई थी तो हुरैन चहलकदमी करने लॉन में आ गई। लॉन में लगे फूल हुरैन को बहुत पसंद थे। शादी से पहले उसका ज़्यादा वक्त इन्हीं फूलों के साथ गुजरता। उनका ख्याल रखते, उनसे बातें करते। हुरैन फूलों की खुशबू महसूस करती हमदान की सोचों में गुम थी कि जाने कब आरिश उसके सामने आ खड़ा हुआ। आरिश को सामने खड़ा पाकर हुरैन घबराकर थोड़ा पीछे हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? हुरैन ने आरिश से पूछा। जो तुम कर रही हो वही कर रहा हूँ, आरिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
बालकनी में खड़ी माहा दोनों को साथ खड़ा देख कसमसा कर रह गई और लॉन की तरफ भागी के छुपकर उनकी बातें सुन सके। मैं तो हमदान को याद कर रही हूँ, हुरैन ने तंजिया कहा। हमदान का नाम हर बात में लेना जरूरी है क्या? आरिश बुरी तरह तपा था। हाँ ज़रूरी है, जैसे सांस लेना ज़रूरी होता है वैसे ही उसका नाम लेना भी ज़रूरी है। इश्क करती हूँ उनसे, सच्चा इश्क। हुरैन उसकी आंखों में झांकती इत्तमाद से कह रही थी। झूठ, इश्क तो तुम मुझसे करती थी। आरिश ने गुस्से से कहा। तुमने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया, करती थी। हुरैन अपनी आखिरी जुमले पर जोर देते तंजिया हंसी। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ये सब ढोंग करती हो, हकीकत में तुम हमदान से मोहब्बत नहीं करती। हुर, वो जैसे खुद को तसल्ली देना चाहता था। पहली बात तो ये कि मेरा नाम हुरैन है, तो दोबारा हूर ना सुनो। दूसरी बात ये कि इश्क हुआ था किसी ज़माने में, लेकिन फिर तुम ही ने एहसास दिलाया कि तुम काबिल नहीं थे उसके, फिर नफरत हो गई तुमसे। लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमदान की हूर को उनकी मोहब्बत के सिवा कुछ याद ही नहीं। हुरैन ने जताते हुए कहा। तुम समझ नहीं रही। तुम छोड़ दो हमदान को, हम शादी कर लेंगे। तुम तलाक। आरिश दीवानों की तरह कहते हुरैन का हाथ थामने लगा। जोरदार थप्पड़ आरिश के मुंह पर पड़ा था। क्या बकवास की तुमने? इतने गिर गए हो तुमने सोची भी कैसे इतनी घटिया बात? हुरैन उसे थप्पड़ रसीद करते गुस्से से धाड़ी थी। माहा को देखा है तुमने? उसकी नजरें देखी हैं? हाँ, वो चिल्लाई थी। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने उससे कुछ छीन लिया हो। मुझसे इतनी इनसिक्योर क्यों है पता है? कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के दिल में किसी और की मोहब्बत हो। कितने दिल तोड़ोगे तुम, कितने? तुम्हें सिर्फ तुम ही नजर आते हो दुनिया में। दूसरों की फीलिंग्स, उनकी ख्वाहिशात कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। वो उससे पूछ रही थी और आरिश अभी तक हुरैन के रिएक्शन पर शॉक्ड खड़ा था। हुरैन, मैं? आरिश ने कुछ कहने को लब खोले। तुम कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे। तुमने बस जिद लगा लिया कि मुझे खुश नहीं रहने दोगे। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो यूं मेरी रुसवाई के मंसूबे ना बनाते, मेरी इज्जत का ख्याल रखते और माहा से शादी की हामी तुम किसी सूरत ना भरते। खुदा का वास्ता है आरिश, सर शराब के पीछे भागना बंद करो, इससे पहले कि माहा की मोहब्बत को भी खो दो, क्योंकि हमदान से मुझे सिर्फ मेरी मौत ही दूर कर सकती है। हुरैन उसे समझाते हुए कह रही थी। वो दिल से चाहती थी माहा के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो और आरिश भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। आरिश बेयकीनी से हुरैन को देख रहा था। माहा भी हुरैन की बातें सुनकर अपने रवैये पर शर्मिंदा खड़ी थी। तभी हुरैन का मोबाइल बजा। कोई अनजान नंबर था। जैसे कुछ सोचते हुए हुरैन ने अटेंड कर लिया। हेलो, हुरैन ने कॉल अटेंड करते ही कहा। हेलो जी मिसेस हमदान। दूसरी तरफ किसी की घबराई हुई आवाज़ थी। जी आप कौन? हुरैन ने पूछा। हमदान सर का कार एक्सीडेंट हो गया है, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप प्लीज़ जल्दी से इस एड्रेस पर पहुंचे। कहते ही कॉल मुनक़ता कर दी गई थी। क्या हमदान? हुरैन एक पल तो शॉक्ड रह गई। अगले ही पल उसके मोबाइल पर एड्रेस मौसूल हुआ तो वो होश में आई। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी। वो जल्दी में ड्राइवर को आवाज़ लगाती गाड़ी की तरफ भागी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ हो? आरिश ने पूछना चाहा। तुम अपनी मनहूसियत का साया मुझसे और हमदान से दूर रखो और ख़बरदार मेरा नाम मत लेना दोबारा। माहा को सवार करो खुद पर, उसे उसके हक दो, जाओ यहाँ से। वो उंगली उसकी तरफ किए रोते हुए गुस्से से कहती गाड़ी में बैठ चुकी थी। आरिश वहीं शर्मसार खड़ा था। ये क्या किया मैंने? मैं कैसे इतने घटिया हो गया? कैसे सोच लिया मैंने ये सब? हूर शादीशुदा है, जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो खुद को कोस रहा था कि माहा ने आकर उसका हाथ थाम लिया, जिस पर आरिश ने गिरफ्त और मजबूत कर दी। आई एम सॉरी माहा, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? आरिश ने टूटे हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं? अगर हुरैन हम दोनों को माफ़ कर दे तो हम भी पुरस्कून शुरुआत कर सकते हैं। मैंने हुरैन को बहुत गलत समझा और वो तो बहुत अच्छी है, दिल की इतनी साफ। माहा शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। आरिश ने उसे सीने से लगा लिया तो माहा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जल्दी चलें करीम बाबा, हुरैन फिक्रमंदी से कह रही थी। आवाज़ भीगी हुई थी। वो मुसलसल हमदान का नंबर डायल कर रही थी जो पावर्ड ऑफ आ रहा था। हुरैन की सांसें रुकने लगी थीं। या अल्लाह मेरे हमदान की हिफाजत करना। वो दिल ही दिल में दुआएं करती ड्राइवर को जल्दी जल्दी की तलकीन भी कर रही थी। पहुंच गए बेटा बस। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा। करीम बाबा ये कहाँ ले आए हैं आप? ये हॉस्पिटल थोड़ी है, हुरैन ने फिक्रमंदी से कहा। इतने में किसी ने खिड़की पे नॉक किया। मैम जल्दी चले, सर की कंडीशन सीरियस है बहुत। हुरैन ने उस शख्स की बात सुनते ही गाड़ी का गेट खोला और उस शख्स के साथ चल दी। आंसू बहे जा रहे थे। वो शख्स भागता हुआ अंदर जा रहा था। हुरैन भी दीवानावार उसके पीछे भागती जा रही थी। दुनिया से बेगानी वो जल्द से जल्द हमदान के पास पहुंचना चाहती थी। एक रूम के बाहर पहुंचकर वो शख्स रुक गया और हुरैन से कहा कि सर अंदर है, आप अंदर चली जाएं। जैसे ही हुरैन अंदर दाखिल हुई तो घबरा गई। रूम की लाइट्स ऑफ थीं। हुरैन को अचानक अजीब खौफ के एहसास ने आन घेरा। उसे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। हमदान,
हुरैन ने कांपती आवाज से पुकारा, यस माय डियर वाइफी। हमदान की आवाज के साथ ही रूम की लाइट्स ऑन हुई थीं। रूम में हर जगह फूलों से सजावट की हुई थी और जहां हुरैन खड़ी थी उसके कदमों से लेकर हमदान तक जाने के लिए फूलों से रास्ता बनाया गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हूर, हमदान ने प्यार से कहकर बाहें खोल ली। हूर फूलों से बने रास्ते पर भागती हुई हमदान के गले जा लगी। जान निकाल ली थी मेरी, ऐसा मजाक कौन करता है। हुरैन ने हिचकियों से रोते हुए हमदान के सीने पे मुक्का मारा। उफ सालिम होर। हमदान ने एक्टिंग करते हुए सीने पर हाथ रखा जैसे बहुत जोर से मुक्का लगा हो। यहाँ पहुंचने से पहले अगर मैं मर जाती तो, हुरैन ने गुस्से में भीगी आंखों से घूरते कहा। कैसे कह लेती हो तुम, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो यार। हमदान के दिल को कुछ हुआ था जब ही हुरैन के होंठों पर उंगली रख के उसे खामोश करवाया। मेरी क्या हालत हो रही थी पता है। हुरैन को वाकई हमदान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा सॉरी ना, प्रॉमिस फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता था अपनी हूर को, हमदान ने शरारती अंदाज में कहते हुए हुरैन के आंसू साफ किए। इतनी मोहब्बत करती हो कि कुछ सोचे समझे बगैर भागी चली आई। हमदान ने उसके गाल पे आई लट को छेड़ते हुए मोहब्बत से पूछा, जिंदगी है आप मेरी, मेरा सब कुछ, कैसे ना आती। हुरैन फिर से रूहानसी हो गई थी। मेरी जान अब रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें बेशुमार खुशियां जीने का मौका दिया। हमदान ने उसे गले लगाते कहा, हाँ और अल्लाह का शुक्र करें कि मैंने आते ही आपके मुंह पे मुक्का रसीद नहीं किया। हुरैन ने हंसते हुए कहा तो हमदान भी हंसने लगा। बहुत खतरनाक लड़की हो भाई, तुम्हारा थप्पड़ आज तक याद है। हमदान ने हंसते हुए हुरैन को छेड़ा। सॉरी, भूल जाए ना वो थप्पड़। हुरैन शर्मिंदा हुई। अच्छा एक शर्त पे भूलूंगा, हमदान ने कुछ सोचते हुए शरारत से कहा। कैसी शर्त पर। हुरैन ने सर उठाकर हमदान की आंखों में देखते पूछा। आज तुम मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका दो कि उन्होंने हमें क्यूट से बेटे से नवाजा। हमदान हुरैन को देखते शोक लहजे में कह रहा था। हमदान आप ना। हमदान की बात पर हुरैन झींक कर हमदान के सीने में मुंह छुपा लिया। हर चीज खूबसूरत थी, सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा, सच्ची मोहब्बत और यकीन की बदौलत।